تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ سحر مبین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جب قرآن اترا اس وقت وہ آ چکے تھے، لوگ ان کو سحر مبین جو ہے وہ کہہ چکے تھے۔ تو اب اس میں ابہام کیا ہے؟ سیدھا سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اسکانی بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفسرین نے جو آیت کا آخری حصہ ہے فلما جاءہم کا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جی۔ کیا آپ فرما رہے ہیں کون ہو سکتے ہیں؟ فلما جاءہم اسکانی البینات، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں دراصل جو فلما جاؤ بالبینات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، اسم و احمد کا مستعد کون ہوا ہے؟ اسم و یہ احمد کا کون سے وہ جو ہے مفسر جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ وہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ یہ اسم و احمد کے عیسیٰ علیہ السلام نے خبر کس کی دی تھی، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ خبر دی تھی اسم احمد کی۔ کس کا ہے اسم احمد؟ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کا آخری حصہ ہے کہ پس جب وہ کیسے گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جو بات پوچھی جائے جتھے لاش پئی، بھائی جتھے لاش پئی اتھے کئی مارو، میں اتھے ہی کئی مارن رہے ہیں۔ اتھے نہیں نا مارن دے، میں پوچھ رہے ہیں اسمہ احمد دا مصداق کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عامر بھائی آپ یہ جانتے ہیں نا، آپ عامر بھائی ایک منٹ، آپ یہ جانتے ہیں کہ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، یہ ذہن میں رہے۔ مگر میں بھی ناراض تو نذیر بھائی، مگر یہ اسکانی بھائی یہ کہتے ہیں، نہیں میری بات سنیں اسکانی بھائی، آپ کو چھوڑنا میں نے نہیں ہے۔ عامر نذیر بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فلما جاؤ بالبینات ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پس جب وہ چلے یہ کوئی ایسا بس ایسا کوئی اہم مسئلہ نہیں، زیادہ ضروری مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہاں پر یہ نہیں کنفرم ہو جاتا میری ہے۔ بات سنو، نہیں میری بات سنو، میری پہلے بات اصل سن، چیز میری پہلے دیکھیں بات میری بات سن۔ سنو، یہاں اس پر یہ دنیا میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ اب آسکانی بھائی کہتے ہیں کہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آخری والا حصہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ نہیں اس کو چھوڑیں، مفسرین کی تو ہم مفسرین کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اس پہ ہم بحث نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن کرسچنز کی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس دنیا میں دوسرے نمبر پر جو قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ سب سے بڑی قوم کے سربراہ نے اپنی قوم کے لوگوں کو آج سے 2000 سال پہلے احمد ہے۔ اب یہ دو بڑی قوموں کے بیچ میں ایک بڑی اہم بات ہے، بتائیں گے وہ کون ہے بندہ جس کی خبر دی تھی سب سے بڑی قوم کے سربراہ نے آج سے 2000 سال پہلے؟ وہ کون، کس کی خبر دے کر گئے تھے وہ؟ دو صورتیں ہیں عامر نذیر بھائی، یہاں پر دو احمد کی تو بات نہیں ہو رہی، ایک ہی احمد کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں وہ کون ہے؟ سنیں نا میں بتاتا ہوں، میں ٹیکنیکل طریقے سے بتاتا ہوں۔ ٹیکنیکل کیوں؟ اس میں سنیں تو ٹیکنیک صحیح کی نا بات نذیر بھائی، سیدھی بات ہے، ایک ہی احمد ہے، وہ کون ہے احمد؟ میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایویڈنس کے ساتھ بتاتا ہوں نا، طریقے سے بتاتا ہوں۔ میں دلیل مانگ ہی نہیں رہا، ایویڈنس میں مانگ ہی نہیں رہا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہے کون آپ کے نزدیک، وہ کون ہے؟ ٹاک ماسٹر صاحب کیا مانتے ہیں؟ اور نہیں میں آپ کا ملازم نہیں ہوں عامر نذیر بھائی کہ آپ جو کہیں گے میں بالکل وہی الفاظ میں دہراؤں نے گا آپ کو برتن مانجنے کا حکم نہیں دیا، میں نے آپ کو آپ کے گھر کی بات پوچھی ہے کہ آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے طریقے سے، آپ کے طریقے سے نہیں۔ مطلب آپ لوگوں کو جو بھی بندہ کوئی سوال کرتا ہے اس کے لیے آپ طریقے کیوں گھڑنے شروع کر دیں؟ میں طریقہ اپناؤں گا، ٹیکنیک لگاؤں گا، کوئی گور اپناؤں گا، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا جواب نہیں دے سکتے؟ وہ اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، جدھر منہ اٹھا ادھر نہیں چلتے۔ سنیں آپ میری اشرف بات، المخلوقات ہیں کہ فراڈی ہیں؟ پہلے میری بات سن لیں،
मेरी पहली बात सुन ले, बाद में फ्रॉडिया का लकब जरूर दे दिएगा। ये बात यह है, अब मेरी पक्का बात पक्का फराडिया systematically नीचे सुन ले। बैठा हुआ, पक्का फराडिया नीचे बैठा हुआ, उन्हें ना करो। अच्छा आप अशरफ अब अल नजीर भाई, मुफ्ती में अब कहा आप था कि थोड़ा सा पक्के खामोश हो फराडिये जाएं। हैं। नजीर भाई आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं, सिर्फ एक मिनट। इस्मोहु अहमद की बशारत दी गई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस्मोहु अहमद की 2 होंगे या 1 होगा, जाहिर है 1 ही होगा। अब अगर उस एक को कह लें कि वो आज का है, यानी 1400 साल बाद का है, तो फिर हम ये कह सकते कि वो तो वो नबी है ही नहीं, वो अपने आप को वो नबी मानते ही नहीं है जो शरीयत के साथ आएगा। वो तो आप इसको नबी नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि मैं तो उस नबी का गुलाम हूँ जो 1400 साल पहले आया। तो अब साफ जाहिर है कि वो जो 1400 साल पहले आए थे वो ही इसका मिसदाक हो सकते हैं, और दूसरा कोई मिसदाक है ही नहीं। यानी इस वक्त तीसरा कोई नहीं है, वही 2 हैं, जिनमें से एक जो है वो 1 का गुलाम है। तो वो इस्महु अहमद तो वो आका ही हो सकता है, गुलाम तो हो नहीं सकता। अब हजरत साहब ये सारी आपकी दलील है, फलां हो सकता है, फलां नहीं हो सकता, फलां होने की वजह ये है, फलां होने की दलील ये है, एविडेंस। मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा। जो मैं पूछ रहा हूं, अच्छा, जो आप पूछ रहे हैं वो फाइनली आप पूछ लें। मैं ये पूछ रहा हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने किसकी खबर दी, वो बंदा कौन है, बस। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके हो गया। ये कितनी साफ बात आपने कह दी। बिल आखिर इतना टाइम लगा के कही है, बिल ये उसी आखिर वक्त तो कह मैंने दी। नहीं कहा। अच्छा, आप नहीं, बिल 2 आखिर लोग क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको पहले ही एक बात कह दी। झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, या आपकी नजर में उनको भी हक है कहने का, कोई इजाजत? बात पर गौर कर रहे हैं ना, उनको 2 सवाब हैं। आप भी कह दें कि भाई ये अगर कोई हमारे किसी बंदे ने मिर्जा साहब के बारे में ये बात लिखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मिर्जा साहब की खबर दी थी, तो उस बंदे ने किया इज्तिहादी, सुन तो लेना, इज्तिहादी गलती में अगर उसको गलती लगी है तो कारा सवाब है, लेकिन अगर उसका मौकफ दुरुस्त है तो फिर 2 सवाब है। दें जो देना है उसको। मैंने तो जवाब दे दिया ना क्या कि उनको 2 सवाब है। उन्होंने तहकीक करने की कोशिश की। गलती करने पर 2 सवाब नहीं होता, इज्तिहादी गलती पर कारा सवाब होता है। पहली बात तो ये है। कारा क्या? नहीं, आस्कानी भाई बताएंगे ये। दूसरी बात यह है कि इसमें इज्तिहाद की तो जरूरत ही नहीं है। नस्से कतई है, 1400 साल उम्मत का इजमा है, कोई 2 राय नहीं है उम्मत में। इस तरह की कोई चीज पाई नहीं जाती कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी शख्स का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर जिक्र किया। चक्कर ही कोई नहीं। ये इज्तिहाद नहीं हो रहा, ये जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, ये इज्तिहाद नहीं है। सीधी बात करें कि एक बंदे ने जगह बनाने की कोशिश की है। किसने की है? मैं वो बताऊंगा जिसने जगह बनाने की कोशिश की है। ना, किसने की है मुझे ये बताएं। नहीं, वो जगह बनाने के लिए एक बंदा कल्ला नहीं चाहिए। एक तो कम बड़ा कुत्ता है, दूजा कल्ले बंदे वाला नहीं। 2 बंदों की जरूरत होती है ना। कुछ हिम्मत कोशिश बाप ने की है, कुछ बेटे ने की है, रल मिल के जगह बनाई। बाप की तो है, वो आप बता दें। बेटे की बात मैं नहीं सुनूंगा, वो इज्जत नहीं है। नहीं, बाप ने भी कोशिश की है। पहले बाप ने, अगर बाप कोशिश ना करता जगह बन सकती नहीं थी। कोई जिक्र ही नहीं कर, सोच भी नहीं सकता। नहीं तो आप बाप की कोशिश बताएं ना। बाप ने अज़ाला हाम में लिखा हुआ है, बाप ने इजाजुल मसीह में लिखा हुआ है कि मैं हूं इस आयत का मिस्ताक। हाँ, दिखाएं, वो हवाला दें मुझे। एक तो ये हवालों की बड़ी प्रॉब्लम है, हमसे हवाले नहीं भाई लगते। कौन लगाएगा वो हवाला? अज़ाला हाम में मिर्जा साहब ने साफ भाई लिखा हुआ लगाएंगे। है, वलीद भाई लगाइए। साफ लिखा हुआ है उन्होंने कि ये आखिरी वक्त में आने वाला जो है ना,
جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے، عیسویت کا رنگ لے کر جو آ رہا ہے، ہاں وہ جی، ہے کہ میری مجدد بات سنیں احمد۔ عامر نذیر بھائی، اب ذرا رکیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، یعنی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسمہ احمد کا جو قرآنی آیت ہے یہ میرے لیے آئی ہے، تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آئی. یہ آپ نے دونوں چیزیں کلیئر کرنی ہیں ان کی تحریر سے. اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمہ احمد کا مصداق سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے، یہ بھی اس بتانا کا ہے آپ جواب، کو. ہاں اس کا جواب بہت آسان ہے، اور میں ان لفظوں میں جواب دینے لگا ہوں جو لفظ اس بندے کے ہیں جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اختلاف کر سکتا ہوں. اس نے کہا، میں اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا. میں اپنی طرف سے آپ کر رہا ہوں، عامر نذیر بول رہا ہوں، اتھینٹک بات کریں نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ میں اتھینٹک اپنی بات طرف کریں سے کر رہا ہوں، اپنی طرف سے. بھائی. آپ سن اپنی تو طرف لیں. سے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ میں کو کہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی بات کر دیں. آپ نے سوال تو مجھ سے کیا نا کہ مرزا صاحب نہیں، کا، میں نے آپ کو جو سوال کیا ہے وہ یہ سوال نہیں کیا کہ ان کے بیٹے کی طرف سے جو لکھا نہیں ہوا نہیں ہے نہیں وہ نہیں بتائیں. نہیں، بیٹے کا تو میں نے صرف ذکر کر دیا ہے، دینے میں اپنی طرف سے لگا ہوں. سن لیں، وہ بات یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خبر مرزا صاحب کے بارے میں ہے، یا مرزا صاحب کا دعویٰ میں ثابت کر دوں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں ہے. اپنا نذیر بھائی، میں یہ بات فالتو کی سننا ہی نہیں چاہتا. آپ مجھے مسیح موعود کا بتائیں کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہو کہ اس کا مصداق رسول کریم نہیں ہے بلکہ میں ہوں. سیدھی سی رسول بات. کریم کی سن لینا، رسول کریم کی نفی تو آٹومیٹک ہوگی، ایک ہی بندے کی پیش گوئی ہے نا. نہیں، یہ آٹومیٹک آپ کی طرف سے ہے، وہ ہے نہیں. اگر آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں میں اس پیش میں گوئی کا جانتا مصداق ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ میں نہیں مارنے دوں گا. سیدھی نہیں سی ڈنڈی بات. کیوں مارنی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا جو میں کرنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اس کا مصداق قرار دیا، تو اس کا مطلب دوسرے سب کی نفی ہوگی، نبی پاک کی بھی نفی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی بالکل سب کی غلط، نفی ہوگی. بالکل غلط. میری بات سنیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا نفس اس میں ہے ہی نہیں ہے، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں؟ یا ان کو پھر تردید کرنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے. یہ آپ کا آٹومیٹک میری نفی بات جو ہے سنیں نا وہ میں نہیں مانتا. آٹومیٹک نفی میں نہیں مانتا آپ کی. ٹاگ ماسٹر صاحب، یہ جو ہوتی ہیں نا شرطیں، یہ لامحدود شروط و قیود لگا کر بات کرنا، یہ ایک منصف المزاج انسان کو زیب نہیں دیتا نہیں، کہ یہ اس آپ کو طرح کی بھی شرطیں زیب نہیں لگائے. دیتا کہ نہیں، آپ یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ہماری مسلمات میں سے باہر کا بات کریں. میں ہماری مسلمات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی مسلمات سے یہ والا دینے لگا ہوں، لیکن آپ شرطیں لگانے شروع کر دی ہیں کہ اس کا اقرار دکھاؤ، اس کا انکار بھی ساتھ ہونا چاہیے. بالکل وہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے محمد کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے. میں کبھی عیسیٰ، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اب آپ کہیں گے جی وہ تو ابراہیم کا بھی دعویٰ کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بیچ میں کچھ نہیں. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو احمد کہہ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہ تو ہے ہی وہی، ان کا دوسرا ظہور ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے. نہیں، اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جب اگر ان کی اس میں جو تحریر ہے اس میں اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمہ احمد کی مصداق ہونے کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے بلکہ میں ہوں، تو پھر میں آپ کی بات مان لوں گا. بات بہت آسان ہے لیکن آپ سننا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حالات نہیں، بہت. وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان آپ سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ ٹاک ماسٹر صاحب کے بارے میں فلاں بندے نے ہمیں خبر دی ہے کہ ٹاک ماسٹر صاحب آج پیر اسکانی صاحب کی براڈ پر بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، فوت ہو جائیں گے. دوسرا کہے اچھا
साथ ये भी मुझे दिखाना है कि वहां पर ये भी उस बंदे ने पेशगोई की हो यार कि दूसरे मिसालें से ना सलामत दें, रहेंगे। नहीं यार मिसालें ना दें आप नहीं, मतलब मुझे इस ये तरह की बता दें। शर्तें लगाना। नहीं नहीं ये आप तो फिर आप तहरीर को ना समझते हुए अपनी समझ के मुताबिक अगर उसमें से नतीजा निकालते हैं तो वो गलत है। हम ऐसा कोई नतीजा नहीं निकालते जो हमारा जाती हो और उसकी कोई दलील ना हो। तो हम ठीक अपना है, जाती सुन नहीं तो तो लेना। ठीक है फिर हजरत, नहीं फिर तो ठीक है, फिर मिर्जा साहब के जो तहरीरें उनके वारिस हम हैं, जो हम कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, बहुत अल्लाह, हम आपको आपके मिर्जा साहब की तहरीर के वारिस की तहरीर पेश करेंगे। हो गया मैं ये सौदा? कह रहा हूँ, नहीं मैं किसी वारिस की बात नहीं मानने वाला। अल्लो विरासत पे भी झगड़ा शुरू हो गया। नहीं ये बात नहीं है ना कि झगड़ा शुरू हो गया रे इसमें हंसने वाली मिर्जा कौन सी साहब बात? की तहरीर के जो असल वारिस हैं उनकी ही मैं बात पेश करूंगा। मिर्जा नजीर साहब की भाई तहरीर आप के जितना मर्जी जोर लगा लें, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप मसीह मौद की तहरीर से ये साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहमद होने की नफ़ी की है और अपने बारे में बताया है कि मैं सिर्फ उनका अहमद का मिस्ताक सिर्फ मैं हूँ। आप निकाल के दिखाएं, बात ख़त्म हो गई। मतलब है कि अगर मैं नफी भी दिखा दूं और उनका अपना असबात भी दिखा दूं तो भी दिखाएं आप दिखाएं, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिखाएं। तो मसला ये है ना कि आप लोग एक जगह मानते हैं, दूसरी जगह फिर जाके मुकर जाते हैं। नहीं ये आपकी गलत फहमी है। अगर अब आपके सामने इस बात का सबूत पेश कर दिया जाए कि मिर्जा, अब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हवाला दे देते हैं, चलें देखें कितनी आपको छूटें दी जा रही हैं। ओके, मेरी मिर्जा ख्वाहिश के साहब की, मुताबिक आप हवाला देंगे, ये आपने एडमिट कर लिया ना। हाँ ओके, दो मेरी ख्वाहिशें ख्वाहिश आपने ये है, पेश की हैं, सुन मैं लें। आपको बताता हूँ। नहीं एक मिनट, आपने कहा लो कि जी मैं मॉडिफिकेशन होने लगी जे, ख्वाहिशां मॉडिफिकेशन होने लगी, सुनना सारा सारे शर्तां मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन नहीं है। आपने जो दावा किया है ना कि मैं वो बात मान लूंगा जो आप कहेंगे कि वो तहरीर ला के दूं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी दोहराया है कई दफ़ा कि हज़रत मसीह मौद की वो तहरीर दिखाएं जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिस्दाक नहीं है बल्कि मैं हूँ। दिखाएं। एक तो होगी ये शर्त कि जिसमें मिर्जा साहब ने ये कहा हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं इस आयत के मिस्दाक, मैं मिस्दाक हूँ। दूसरी कोई शर्त? बस इतना ही काफ़ी है। नहीं एक और शर्त भी आपने पेश की है वो कौन सी? कि उसका मानी मैं अपना जाती ना पेश करूं। आमर नजीर का तो कोई हक नहीं ना मिर्जा साहब की तहरीर का कोई मानी निकाले। हाँ जाहिर है, ये तो अंडरस्टूड है ना। उसका वो मानी पेश किया जाए जो मिर्जा साहब के वारसों ने किया हुआ है। मैं भी वारिस हूँ, मैं भी करूँगा। नहीं, अब वारसों पर भी मैंने फैसला करना है कि आप में से वारिस कौन है, कि ये भी आपने फैसला करना है। नहीं आप वारिस की बात कर ही नहीं सकते, आप मसीह मौद की बात करें। आपके मसीह मौद की तहरीर का मैं अगर मानी बयान करूंगा तो आप कहेंगे तुम तो दुश्मन हो, तुम तो मुखालिफ हो, तुम्हारा मानी मैं नहीं मानता। किसी दूसरे वारिस से गलती भी सरजद हो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह, कई मरवाना इथे पहले कई मरवाना। यार वलीद भाई कहते हैं नारे ना मारो। अभी जो आमिर नज़ीर ने दावा किया था कि मैं हज़रत मसीह मौद की बात की जो बात करूंगा उनकी किताब से सबूत दूंगा, वो सबूत निकाल के दिखाएं, जोर लगा लें जितना लगा सकते हैं। उनकी तहरीर का जो मानी मैं बयान करूंगा आप मान लेंगे? नहीं, जो मैं बयान करूंगा वो आपको माननी होगी। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। शहजाद हुरम साहब को दवा दियो, कल उन्हें दी नहीं दलील। मिर्जा साहब खुद कह रहे नहीं राजा साहब ए मुस्लिम मौत किधर गए ने? आमिर भाई मुस्लिम मौत की करना आए सी तो 20 फरवरी वाले जैल सर जी ओ मतलब मुस्लिम मौत को गलती हो गई है तो टाक मास्टर जी आख रहे ने उनसे यार गलती हो हुण सकती खुद है। से हवाला संभाल लो अमर भाई, कल कह नहीं सिरे शहजाद हुरम साहब का हवाला संभाल लो, काम आएगा। वलीद आज काम भाई, आन ला जी। वलीद भाई हुण एक दूसरे की सपोर्ट करन दा छोड़ो, जो इन्होंने दावा किया सी आमिर नज़ीर ने उन्होंने पूरा करो। ਉਹ ਦਾਵਾ ਤੇ ਤਾਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਹੁਣੀ ਮਾਰੀ ਆ ਨਾ
ਇਹ ਕਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਅਬ ਨਜ਼ੀਰ ਚ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਾਂਗਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ। ਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ख्वाहिश ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕਿੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਿੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ किधर गया वाला सिम खोल जा। लो जी और उस आने वाले का नाम जो अहमद रखा गया है। अजाल्ला हाम इस्सा दोम रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 463। और उस आने वाले का नाम जो अहमद रखा गया है वो भी उसके मसील होने की तरफ इशारा है, क्योंकि मोहम्मद जलाली नाम है और अहमद जमाली, और अहमद और ईसा अपने जमाली मानों की रूह से एक ही हैं। उसी की तरफ ये इशारा है। व मुबश्शिरम बे रसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत अहमद ही नहीं बल्कि मोहम्मद भी हैं। यानी ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे खबर नहीं, वो तो अहमद भी हैं और मोहम्मद भी हैं, यानी जामे जलालो जमाल हैं। लेकिन आखिरी जमाने में पेश गोई के मुताबिक मुजर्रद अहमद, सिर्फ अहमद जो अपने अंदर हकीकत ईसवियत रखता है, जिसने मसीले मसीह होने का दावा किया है, वो भेजा गया है। अच्छा, तो इसमें से आप क्या समझे? अच्छा, इससे ये मैं यही समझा हूं कि इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नफी की गई है, क्योंकि वो अहमद ही नहीं बल्कि मोहम्मद भी हैं, यानी जामे जलालो जमाल हैं। इस पेश गोई के मुताबिक जो पेश गोई है, आखिरी ज़माने में जो सिर्फ अहमद बंदा है ना, जिसका नाम सिर्फ अहमद है, जो अपने अंदर हकीकत ईसवियत रखता है, जो मसीले मसीह होने का मदई है, उसकी खबर है ये। ओके, अब मैं बोलूं? बोलें। आपकी वो तीर और तलवार पूरा हो गया? नहीं, आपकी एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई है ना कि मिर्जा साहब की वो तहरीर। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये तहरीर आप पढ़ के तो आप नारा मारें, लेकिन उसके बाद मेरी बात सुन लें। हाँ, आपकी सुनेंगे, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से आपकी एक शर्त पूरी कर दी है कि मिर्जा साहब की वो तहरीर की जाए यहाँ पर आप मुझे मिर्जा नफी साहब दिखा दें। ओके, यहाँ पर नफी दिखा दें जो आप कह रहे हैं कि नफी की है। नफी तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अहमद ही नहीं हैं बल्कि मोहम्मद भी हैं। एक मिनट रुक जाइए, क्या है? सिर्फ अहमद ही नहीं है बल्कि मोहम्मद भी हैं। मोहम्मद भी हैं। हाँ, तो क्या हुए? वो अहमद हुए कि ना हुए? नहीं, पेश गोई उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अहमद हुए कि नहीं हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद नहीं, वो तो ठीक है। आमिर नजीर भाई, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मसीह मौद ये कह रहे हैं ना कि वो अहमद भी हैं और मोहम्मद भी? हेलो, मैं मान रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद भी हैं और मोहम्मद भी हैं। तो नफी कहाँ पर है? सुन तो लेना। नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि नफी कहाँ पे है। बोलने नहीं दे रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुने ना। आपके मसीह मऊद ने लिखा है कि असल मिस्दाक इस पेशगोई का मैं ही हूं, क्योंकि यहाँ सिर्फ अहमद की पेशगोई है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद और मोहम्मद दोनों थे। अच्छा, तो नफी हुई अहमद होने की? हाँ, मैं और क्या पश्तो बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं
کہ آپ کے مسیح موعود نے میں آپ کو یہ بتاتا لکھا ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بتا دیا کہ وہ احمد خود کو کیوں کہتے ہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور ہیں، وہ اس لیے احمد بھی ہیں، مگر صرف احمد ہیں، محمد نہیں ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے میں بہت اونچا بول رہا ہوں کہ ہمسائے نہ آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ وہ دو جو ہیں محمد اور احمد، وہ دونوں سے وہ جو دونوں نام ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن میں صرف احمد ہوں، مجرد صرف احمد، محمد نہیں ہوں۔ میں 1 منٹ کی بریک کے بعد آ رہا ہوں۔ یہاں پر نہیں، یہ مجھے بات بتایا نہیں کہ ہے پاک مذہب ضالہ وہام میں نہیں، ایک غلطی کا ضالہ میں مرزا صاحب نے تو کہا میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، خاتم الانبیاء بھی ہوں، تو وہ تو میں لیکن پہلے بروزی طور پر۔ وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور سمجھتے کہتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے محمد کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ بالکل، میں کب کہتا ہوں کہ وہ محمد نہیں ہے؟ وہ ہاں، تو محمد یہی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو ماسٹر جی، وہ محمد اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ طریقہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا، یہ نہ کہ ماسٹر جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لیکن مرزا صاحب کا ظہور اس میں احمدی جو صفت ہے نا اس کا ظہور ہوا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یعنی بروزی طور پر مرزا صاحب نے اس کا ظہور ہاں ہوا۔ بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ماسٹر جی میری ایک بات سن لیجئے، ایک نقطہ سن ان کی جو لیجئے ماسٹر جمالی جی۔ صفت ہے وہ اس کا ظہور جو ہے اس جمالی صفت میں ہے۔ جی، اب یہ عامر نذیر بھائی اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اور ماسٹر جی میرا ایک وہ نقطہ سن لیجئے۔ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، ورنہ بات تو اس سے نہیں چوہان بالکل جی ایسا صاف ہے۔ نہیں ہے، سن لیجئے چوہان جی، ذرا سن لیجئے۔ خیریت سے ہیں چوہان صاحب؟ جی جی الحمدللہ۔ اچھا یہ نقطہ سن لیجئے، مرزا جی یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف احمد نہیں ہیں، وہ محمد اور احمد ہیں۔ یہاں جو پیشن گوئی ہے وہ مجرد احمد کی ہے، محمد اور احمد کی نہیں ہے۔ مجرد احمد کون ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں میں ہوں۔ اس بات کو آپ سمجھیے، اچھی طرح سے پڑھیے۔ ہاں جی، ہم نے بڑی دفعہ پڑھا ہے، آپ کو جو سمجھ آ رہی ہے نا وہ غلط ہے، غلط سمجھ آ رہی سمجھنے ہے۔ کے بعد آپ کو بھی تو سمجھانا ہے نا، نہیں سن تو یہ بھی لو، تو ہم نے کرنا ہے نا۔ سن تو لیجئے نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد ہیں، وہ نہیں، وہ مثال دے رہے ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں احمد؟ مجرد احمد نہیں ہو سکتے، ان کا نام تو محمد بھی ہے۔ ایک منٹ، بہت اچھا ہے بھائی، ابھی ایک دیکھیں نا منٹ، طارق بھائی، یہ اتنی ایک منٹ ڈنڈیاں نا مارتے بھائی، ہیں۔ بھائی بات تو سنیے نا، مکمل بات تو کرنے دیجئے۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ احمد بھی ہے، وہ محمد بھی ہے، مگر میں صرف احمد بھائی ہوں۔ وہ اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں میرے عزیز، میرے محترم، اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ صرف احمد نہیں ہیں۔ یہ صرف احمد کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ میرا نام آسکانی بھی ہے، وہ پیر احمد بھی۔ ایک بھی منٹ ہے، بھائی، ایک اچھا منٹ، وہ احمد بھی ہے، وہ محمد بھی ہے، پر وہ احمد نہیں ہو سکتے، یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ وہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، وہی نقطہ آپ کو سمجھانا آپ چاہتا ہوں۔ سمجھیے، سمجھائیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سنیے تو سنیے، علی صاحب پہلے خود سمجھیں پھر سمجھائیں۔ بتاتا ہوں، سنیے۔ میرا نام آسکانی بھی ہے، نہیں پیر نہیں، بھی آپ ہے۔ مثالیں نہ دیں، ایک آپ منٹ نا، ہمارے پاس جو موجود ہے وہ اس کی بات تو کریں نا، سنیے، مثالیں کو دیں۔ ایسا مت کیجیے نا، بات تو سنیے، بات سنیے۔ نہیں، اگر تو میں نہ سمجھوں تو آپ مثال کے دے دیں نا، اب مثالیں نہیں خام کا دینے کا نہیں، مطلب ایسا کوئی نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ نہ سمجھیں، سن تو لیجئے۔ میرا نام پیر بھی ہے، آسکانی بھی ہے۔ بھئی آپ کا ذکر ہی نہ یہاں پر ایک نہیں منٹ ہو۔ بھائی، ایک منٹ بھائی اسکانی پلیز، صاحب آپ غلط مثال دے رہے ہیں، یہ مثال غلط میری ہے۔ بات تو سن لیجئے۔ مثال دے کے بڑا وہ تیر چلا رہے ہیں، ارے بھائی مثال بات دیں تو گے سنیے، جب بھی دیں گے۔ بھائی بات تو سنیے، کیا ہو جائے جب گا؟ ہمارے پاس آشکانی بھائی سامنے کی بات موجود ہے، عامر نذیر نے کہا تھا کہ انہوں نے احمد ہونے کی نفی جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا دکھا میری سکتے بات ہیں؟ تو سنیے، کیا ہو جائے گا؟ بات تو سنو، بات سنیے۔ بات یہ ہے پیشن گوئی مجرد احمد کی ہو رہی ہے۔ اوہو، پیشن گوئی احمد، ایک مجرد منٹ، احمد کی نہیں ارے ہو بھائی رہی ہے۔ ایک منٹ، بھائی ایک منٹ، اللہ کا واسطہ تمہیں۔ اسمہ احمد، مجرد احمد کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، نہیں جس کا نام مجرد احمد ہوگا۔ نہیں، آپ کو کس نے بتایا مجرد احمد کی پیش گوئی ہو رہی ہے؟ لکھا ہوا ہے وہاں، آپ کا خلیفہ جو ہے وہ دوسرا، وہ اس جو کی لکھا وضاحت ہوا کرتا ہے، ہے۔
जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या बता मेरी रहा हूँ आप बात सुन क्यों लें। नहीं पूरा सुनते आप? अस्कानी साहब खलीफा की मेरी तरफ बात ना सुन लें, जाएं, आपकी बात सुन ली है। खलीफा की तरफ ना जाएं, हम सिर्फ वही मिर्जा साहब बात की तहरीर नहीं, पर बात बात करें। यह है ना, मेरी बात तो सुनिए, आप मत नहीं, मानिए। आपकी बात मैंने सुन ली है, अब मेरी बात सुने। कहाँ वो सुने? ये मेरी कह बात रहे पूरी हुई नहीं, किसी को समझ आया ही नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे तो समझ आ गई है ना, मैं इतना गैर समझदार नहीं हूँ। आप मेरी चले बात आप सुन बात लें। करने मुझे तो नहीं दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं, कीजिए, हाँ, आप मेरी बात सुन लें। मैं बताइए। वो ये कह रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अहमद थे बल्कि वो मोहम्मद भी थे, जी। और इस तहरीर में ये बात साफ बताई गई है कि वो अहमद भी थे और मोहम्मद भी थे। वो ये ठीक। कहते हैं कि मैं सिर्फ मोहम्मद नहीं हूँ, मैं सिर्फ अहमद हूँ, मुजर्रद अहमद हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे भाई यही तो बात है, इसी नुक्ते को तो समझिए। यही तो वो नुक्ता है कि यहाँ जो पेशगोई है वो मुजर्रद अहमद की है, नबी अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम मुजर्रद अहमद नहीं है बल्कि वो मोहम्मद और अहमद हैं। यहाँ जो बात है वो मुजर्रद अहमद की हो रही है, मोहम्मद और अहमद की नहीं हो रही। ये बात है। फिर वही बात, वो हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है ना, क्योंकि मिर्जा साहब तो कह रहे वही हैं बात पर आ जाते हैं। अस्कानी भाई, मैंने जितना नहीं, मेरी बात सुने, मिर्जा साहब कह रहे हैं इस्मो आमद की पेशगोई एक ऐसे नबी के मुतल्लिक है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बिला फस्ल आएगा, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मिर्जा साहब ने तो इसके ऊपर कहाँ कैटेगोरिकली है बता चौहान जी, दिया कहाँ है कि वो इक्तबास? ये अभी मैं आपको मैंने आपको कई दफा भेजा हुआ। नहीं तारिक भाई, जोन सी अजाला हाम की तहरीर है उसमें गलत लिखा होगा मिर्जा साहब। तो उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि गलत नहीं लिखा हुआ है, आप उसमें गलत इन्होंने समझ कहाँ लिखा हुआ कि मैं इस्मो आमद की पेशगोई का मिसदाक हूँ? इज़ाला ये वाम। उसमें पढ़े 400 भाई पंजाब। ब्रूजी नाम आप में उन्होंने हमें लिखा ना हुआ है। बढ़ाएं। मोहम्मद देखिए वलीद मिर्जा भाई साहब ये हजरत लिखे हैं मोहम्मद पहले ही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज है, ये उनका दावा है। तो हम जो पहले भी ही हम पढ़े उनकी लिखे तहरीर हैं। पढ़ेंगे ना, वो इसी तनाजुर में पढ़ेंगे। वो ये कहते हैं कि मैं ही रसूल किश्वर का दूसरा वजूद हूँ, दूसरा बेशक वहां सानी क्यों हूँ। जा रहे हैं आप? और मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं वलीद भाई को बात कर रहा हूँ, आपसे मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है। वलीद भाई, बात ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा ज़हूर हूँ, अहमद के रूप में, मोहम्मद के रूप में नहीं, ये बताने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस बात की समझ नहीं आई। ये दावा कब किया उन्होंने? ये दावा कब किया उन्होंने? ये जो अजाला है वो हाम आप पढ़ रहे हैं, ये वही तहरीर है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने दूसरी बेसत का दावा कब किया है? चलो, आप जो मुद्दा चल रहा है पर उस पर भी तो बात सुन लें ना। तो आप जिस मुद्दे को जिस मुद्दे के साथ मिला रहे हैं, आप जिस मुद्दे के साथ मिला रहे हैं पिछले आधे घंटे से, मैं तो आपको उस कह रहा मुद्दे हूं को कि तो इस बताएं तो सही ना। तहरीर में मेरी मैं बात आपको सुने नहीं ना, मेरी बता बात रहा सुने। हूं। अजाला हाम जब मिर्जा साहब ने लिखी, सुन लें, अजाला हाम जब मिर्जा साहब ने लिखी, क्या मिर्जा साहब ने अजाला हाम लिखने से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेसत का, ज़हूर का दावा कर दिया था? उन्होंने तो स्टार्ट इसी से किया है। उन्होंने दिखाएं, खुद अपने तहरीर आप को लाएं। कभी उन्होंने तहरीर लाएं। कभी वो यानी हकीकी नबी भी नहीं कहा, गैर चरी नबी, दावा गैर दावा हकीकी दावा नबी, दिखाएं, जिल्ली दावा नबी, दिखा दें, बरूजी दावा। नबी, दावा दिखा दें। हर जगह पर ये मौजूद है, मैं आपको दावे दिखाता रहा हूँ। कौन सा पेश आप तहरीर कर रहे हैं, आप एक गलती के अजाले की तहरीर को यहाँ पर फिट कर रहे हैं, जो उससे 10 साल पहले लिखी गई है किताब, और आप उसको इधर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक इंसाफ की बात है? 10 साल नहीं, मास्टर जी 20 साल पहले ले जाए ना, मसला तो यही है आपका। बहरहाल मैंने जितनी बात करनी थी उतनी कर ली देखिए, है। मिर्जा साहब जो आप है ना, जाने तो तारिक भाई उनका जाने। असल दावा है वो है कि वो 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं, और 14वीं सदी के मुजद्दिद को उन्होंने बताया है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूजी तौर पर ज़हूर हैं। तो जितनी भी आप उनकी टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, उसको इसी तनाजुर में आपने देखना चौहान जी, ये है। आपने अब ये कह देना कि जी वो थोड़ी सी हजरत वजाहत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कीजिए। वसल्लम को छोड़कर खुद अहमद बन गए हैं, ये आपकी सारी गलत बात है। आप इसके ऊपर जितना मर्जी रगड़ा लगाए जाए वो झूठ होगा। मिर्जा साहब सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, 13वें खलीफा। 13वें खलीफा की ये मुकाम उन्होंने ये बताया है सारी बातें, कि वो नबी का लक़ब पाने वाला भी है क्योंकि उसको मुकालमा मुहातबा इलाहिया मिला, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर भी है। वरना हर मुजद्दद जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर है, लेकिन मिर्जा साहब एक ख़ास ज़हूर हैं क्योंकि वो ख़ातमुल खुलफा हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये उनका बुनियादी दावा है। आप इसके बाद आप जो मर्जी मिलाते जाएं, वो आपकी अपनी गलती होगी।
बुनियादी दावा जो है उसको ना मतलब अपने जहन से महव ना करें। यही बात इजाला अवाम में, यही बात एक गलती का इजाला उन्होंने की बरूजी तौर पर। भाई बरूज है वो, और अच्छा, बरूज ठीक क्या है। होता है कि जो असल है शख्सियत उसकी सिफात का वो मजहर बन जाए। ना 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 हर चीज इसमें देखें। भाई एक मिनट, तारिक चौहान साहब, तारिक चौहान साहब पंजाब एक से बात थोड़ा सा है। बात करने दो। पंजाब काफी टाइम से बैठा हुआ। जी पंजाब। अच्छा, मेरा एक जनाब सवाल यार है मैं कि क्लियर करना चाहूंगा, मैं अपना किस मजहब से लोग बैठे हुए इस एक मिनट शहजाद साहब, ये पंजाब साहब क्या कह रहे हैं? जी पंजाब जी। मैं क्लियर करना चाहूंगा भी केड़ा कौन कौन दोस्त है किस किस मजहब से इस ब्रॉड में बैठा हुआ है। हम लोग सब कितनी जो देर है होगी जे ब्राड सुनते भाई, हम ब्राड सब- कितनी देर होगी तन सुनते? हम लोग सब थोड़ी यहूदी देर हैं, होगी। आप मुसलमान हैं, आप बात कीजिए। जो बात हो रही है उस पे बात कीजिए। ये सारे यहूदी बैठे हुए हैं। जी ठीक है जी। मिर्जा कादियानी है जो, ये तो एक नंबर का फ्रॉडिया आदमी है, नशई आदमी है। हाँ हाँ ठीक है। मसले पे बात करोगे? मसले पे चलो कोई मसला है? चलो नीचे बैठ के, नहीं बस ठीक है, घंटा हो गया हम लोग बात कर रहे हैं, कहते कौन कौन से मसले करने से हैं। तमाशा बनाया हुआ है भाई। अच्छा शहजाद साहब क्या इससे कहना पहले चाहते थोड़े हैं? पहले थोड़े मसले अच्छा फंसे हैं अस्कानी जरा साहब, नमक। मेरा एक तारिक साहब से सवाल है, जी कर सकता हूँ? इजाजत है? हाँ बिल्कुल इजाजत लो है, जी बात पेश गोई सुन लो मेरी। मिर्जा बशीरुद्दीन साहब ते तारिक चौहान साहब के दरमियान गल होनी जी। शहजाद साहब नहीं पहले नहीं, तारिक साहब मेरा सवाल एक है, पेश ये कल गए थे, तारिक साहब इन्होंने 3 चीजें पेश करनी थी। एक लो। इन्होंने पेश करना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इमाम महदी के बाद मुजद्दिद मैंने आपको नहीं कहा, आपने अपनी दूसरी तरफ से बात कहा कि इन्होंने मुझे पेश तो करनी प्लीज थी मुझे ये पेश करो। कि मिर्जा साहब ने कहा है कि मेरे बाद मुजद्दिद खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात इन्होंने पेश करनी थी कि ये जो रसूल मुबश्शिर बिरसूल याती मिन बादी इस्मो अहमद की पेश गोई जो है ना, ये आयत मिर्जा साहब पर नाज़िल हुई थी। ये 3 बातें ये लेने गए थे, इसका हवाला अभी तक वो नहीं आया। इसका मतलब है कि उन्होंने तीनों के मतलब झूठ बोला है, क्योंकि इसका उन्होंने कोई अभी तक गलत बात नहीं ना पेश किया। करें। जहाँ पर अस्कानी साहब तारिक बैठे साहब हुए हैं, ਤੁਸੀਂ इनको ਇੱਕ भी ਕੱਟਾ कई ਨਹੀਂ दफा संभालिया हवाले जा ਰਿਹਾ, दिए ਤੁਸੀਂ गए हैं। 3 ਕੱਟੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਤਾਂ सोहेब ਤੁਹਾਨੂੰ राजा नहीं, साहब को भी मैं पता ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि शहजाद सोहेब खुरम वो राजा साहब शख्स को है पता है इस ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं हवाले का दिखाऊंगा कि कि फिर हदीस आंदा कर दूंगा। में 12 मुजद्दिदीन का जिक्र है, ठीक है, हर सदी के भाई वो सर पर हदीस मुजद्दिद दिखा दो आएगा। जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम महदी के बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म है। वो कहाँ पे लिखा है? वो मैं बताता हूँ ना। आपने बता दो। फरमाया है कि मसीह महदी जब आएगा उसकी जाकर मेरा सलाम पहुंचाना, उसकी बैत करना। तो बैत किसकी की जाती है? कोई मुजद्दिद की जाती है, उस पर फर्ज होती है मुसलमानों पर वो जाकर मुजद्दिद की बैत करें हाँ, कि मिर्जा साहब तो यही कह रहे हैं मुजद्दिद का मुनकर फासिक है, आयत इस्तखलाफ से साबित कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं उसी की बैत करनी मुनकर की बैत नहीं, वरना आप बात नहीं फासिक कर हैं, रहा मैं, अल्लाह और बैत रसूल के की बात कर नाफरमान रहा हैं। हूँ कि मदद करनी है, बैत करनी है उनकी जाके। ओ इसका भाई क्या मतलब है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है बैत मुजद्दिदीन का नबी सिलसिला की खत्म हो होती जाएगा? है कि मुजद्दिद की बैत होती है? 14वीं सदी के मुजद्दिद के बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इस हदीस में कहाँ लिखा है बताओ? और आप तुमने ये मुजद्दिद कहा के था, पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तुमने ये दावा आपको किया जब्बा था साहब की तरफ कि जाना है तो हजरत जाएं, मोहम्मद मुझे सल्लल्लाहु उसकी अलैहि वसल्लम ने जरूरत नहीं है। फरमाया इमाम मेरी महदी बात के तो बाद सुन लें। मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और मैंने आपसे अर्ज की है कि ओ भाई कहाँ है वो हदीस? हजरत नंबर बताओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाया का है। नंबर बताओ, कौन सी हदीस है? हम पढ़ते हैं, हदीस का नंबर बताओ। लो अजीब बात है, क्या लो? आपके सामने कई हदीस का दफा नंबर पढ़ी जा बताओ चुकी जिसमें है। लिखा हुआ है तारक साहब इमाम आप महदी के सालों से बाद यहाँ पर हैं, मुजद्दिदीन का कुछ सिलसिला झूठ खत्म ना हो बोलने जाएगा। की आपकी नजर से ये हदीसें नहीं गुजरी। तो भाई बताओ कहाँ झूठ है? ना बोला करें। नंबर बताओ कि आप यहाँ पर नन्हे काके आए और हैं, नंबर पहली बताओ दफा आए हैं कि आपको मिर्जाई, पता ही नहीं झूठे कुछ हवालों मिर्जाई, का। झूठे मिर्जाई, नंबर बता कहाँ पे है, कौन सी हदीस है? मैंने आपको हवाला दिया है कि जब आप सल्लल्लाहु कौन सा अलैहि हवाला वसल्लम दिया? ने कौन सा फरमाया नंबर है? तारिक साहब एक मिनट दें, कि तारिक साहब एक मिनट दें, तारिक साहब एक मिनट दें। शहजाद खुरम साहब ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, हाँ। ਚੱਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ नहीं ये कि कहते मैं हैं जो कि तारिक वो चौहान साहब से मुजद्दिद सवाल हैं, करना है कर लो, वो सवाल उनकी भी करो बैत तो करना भी नाल जवाब भी जरूरी दियो नहीं है दियो फिर और बैठ उनको के मानना जवाब। भी जरूरी नहीं है। तो ये फिर वो सब जेडी फिर हुन- मानते हैं हाँ, कि लेके आओ, मुजद्दिद लेके बैत आओ। करना भी हदीस जरूरी मांग नहीं रहा है, हूँ उसको मैं, मानना भी जरूरी आपकी नहीं है। तो फुफड़ी फिर हजरत रब्वा मिर्जा की साहब का दावा क्या एक्सप्लेनेशन रहा? नहीं मान रहा। मैंने सिर्फ आपसे पूछा है वो हदीस नंबर बता दें जिसमें इमाम महदी के बाद मुजद्दिदीन भाई का सिलसिला के खत्म होने का तारक फरमाया गया। साहब बड़े मोहतरम तारक ओ भाई, साहब, नंबर सिर्फ कौन आपसे सा है? सवाल ये है यार, नंबर शहजाद बताने साहब मुजद्दिद कह के की जान बैत छुड़ा लो, मेरे करना को नहीं है। जरूरी कहाँ लिखा हुआ है कि मुजद्दिद शहजाद साहब बुखारी कह दो की मेरे है, को हदीस मुस्लिम नहीं की है, है, जान छुड़ा लो। कौन सा नंबर है बता दो, कौन सा नंबर? तारक हम साहब अभी देख मैंने लेते हैं। आपसे एक आम सा सवाल किया है, कोई यार आपसे अजीब कोई- आदमी हो अभी, आपसे तुमने कोई- दावा कोई किया है तफसीर नहीं पूछनी कि किसी हजरत आयत मोहम्मद की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया। सवाल किया है
तारिक साहब अगर एक मिनट देना, मुजद्दद है शहजाद खुरम साहब एक मिनट दियो, हजरत मिर्जा शहजाद साहब साहब, शहजाद सिर्फ साहब, मुजद्दद शहजाद साहब है, एक मिनट दियो, आपके एक मिनट दे दियो नजदीक शहजाद सिर्फ साहब, मुजद्दद है ना, तो सिर्फ एक मिनट दे मुजद्दद दियो, की बैत करना क्यों जरूरी है? मैं बाकी बताता हूँ, मैं बताता मुजद्ददीन हूँ। की लोगों ने क्यों बैत नहीं की? इस अच्छा मुजद्दद अच्छा, की एक मिनट, बैत करना क्यों जरूरी है फिर? वो एक मिनट सब्र कर लो। अच्छा अपना तारिक भाई, आपने वो हदीसें चाहिए ना आपको, जिसका कल इन्होंने दावा किया था, हाँ जी। शहजाद साहब टू द पॉइंट दस दियो, हदीसां हाले लभियां गईयां वा कि हाले लभणियां वा, कल रात को कौन लेके सी उठ तक। हदीसों की बात कर रहे हैं? ये मुझ पर थोप रहे थे। मैंने इनसे ये अर्ज भाई की इसने कि कहा आपके है, हजरत सामने ये मोहम्मद हदीस है कि हर सदी के अस्कानी साहब सर इसके पर गवाह मुजद्दद है। आएगा। इसने वली कहा साहब आपके हजरत इल्म में ये मोहम्मद बात है कि नहीं कि सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाया है है कि हर मेहदी सदी के के सर बाद पर मुजद्दद मुजद्दिदीन आएगा। का ये मैंने सिलसिला बात खत्म की हो थी। जाएगा। ये कहते हैं कि मुझे तो वो इस ला के तरीके से दिखाओ हम कि जहाँ मिर्जा साहब 12 को झूठा सदियों का कर देंगे जिक्र ना, है। क्योंकि मिर्जा साहब मैंने तो कहा ये तो आपके उलमा भी मानते हैं, सब हाँ जी, मानते वो हैं। मिर्जा साहब नहीं झूठे तारिक साबित हो चौहान जाएंगे साहब ना, दे आप वो हदीस ओ दिखा भैया, दें, हम मिर्जा ਉਹ साहब को ਭਈਆ छोड़ ਤਾਰਿਕ दें ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ क्योंकि वो झूठे ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ साबित हो ਸਾਹਿਬ ਦੇ जाएंगे। ਆਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, हाँ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹਾਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚੰਗੀ हाँ ਭਲੀ जी, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई ਜਾਂਦੇ मेरे ਨੂੰ ਹੱਥ मेरे हदीस ਦੇ पास नंबर लेके 10 आए, हदीसें हम पड़ी देखें। हुई हैं। मैं कौन कौन सी दिखाऊंगा आपको? चलो ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਸਨ। इनको एक मुझे ये नहीं समझ आती, यहाँ पर आप भी मोहम्मद वली साहब बैठते हैं रोजाना और तारिक चौहान साहब भी बैठते हैं और सबको सब हवालों का पता है, मगर चलो। फिर पर हमने आपसे जानबूझ के अजीब बार बार आदमी, मांगते हैं कि अगर हमें पता हवाला है दो। तो फिर दे क्यों नहीं देते हवाला? आपने अजीब है देना है, आपने इसकी देना है, मंतक है, आपने देना है, सबको क्योंकि पता है दावा सारा आपने कुछ। किया है ना। मैं तो कह रहा हूँ तारिक चौहान साहब ने हदीसें पढ़ी होंगी, वो भूल गए होंगे, तुम उन्होंने याद कराओ हदीसां ले आके। लो सही है। क्यों ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ ਆਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਗਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। हाँ जी, अच्छा ठीक है। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, मैं जो चुप कर ये जी मसनद अहमद बिन हम्बल की नोट करें, क्योंकि इसने नोट करें जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 9312 बहुतान मसनद बांधा अहमद है। बिन हम्बल, तुम में और से मिर्जा जो साहब जिंदा को रहेगा, झूठा ये करार दे हुजूर दिया, सल्लल्लाहु इसलिए अलैहि हदीस पेश वसल्लम का कर। फरमान है। तुम में से जो जिंदा रहेगा वो इंशाअल्लाह ईसा इब्ने मरियम का ज़माना पाएगा, वही इमाम महदी और हकम और अदल होगा, जो सलीब को तोड़ेगा और खंजीर को कत्ल करेगा। ईसा इब्ने मरियम इमामन महदियन फरमाया है इस हदीस में, ठीक तो है। आगे बताओ ना, कि लिखा हुआ है कि मुजद्दिदीन का सिलसिला बंद हो गया, ये ओ तुमने भाई कहा था। मेरे मुजद्दिदीन का तो लिखा ही नहीं हुआ, इमामन महदियन तो यही ईसा तो मैं इब्ने कह रहा मरियम हूं, फरमाया तुमने हुआ झूठ है। क्यों बोला फिर? क्यों झूठ बोला कि मुजद्दिदीन का सिलसिला बंद हो जाएगा? क्यों झूठ बोला ये और तुमने? जब इमाम महदी आ गया, ईसा इब्ने मरियम आ गए, ओ तो कौन से मुजद्दिद आएंगे? बदबख्त इमाम महदी मुझे ने कहा है बताएं। आके कि मेरे और पास कोई मुजद्दिदीन एक का भी सिलसिला बंद हो मुसलमान जाएगा। मानता है कि ईसा इब्ने मरियम के चलो, साथ को मुसलमान मुजद्दिद भी मानता है। आएगा? बताएं मुझे और कौन मुसलमानों, साहब मानते हैं? अगर मुसलमान तुम उनको मुसलमान समझते हो तो फिर मिर्जाइयत का ये रपड़ क्यों डाला? अगर तुम उनको मुसलमान समझते हो, उन्हीं की बातों को तुम अगर कोट करोगे तो मिर्जाइयत के ऊपर लानत डालो, उन तारक मुसलमानों चौहान के साथ मिल साहब, जाओ आपका अकल काम जिनके करती तुम है? हवाले दे कैसे रहे हो। गंदी बातें करते हैं, दिमाग ये आपका गंदी ठीक बातें काम करता नहीं हूं। करता। यहाँ पर आके ब्राड पे बैठ के ये बातें और करनी शुरू कर बेवकूफ देते हैं। आदमी, और तुमने बातें तो दिखाना ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि तुमने वसल्लम की हैं। तुमने जो ये मैं कर रहा दिखाना हूँ, था ये कि हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम की फरमाया है। इमाम महदी अकल के नहीं है बाद आपको? मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म हो जाएगा, ये तुमने दिखाना था। कहाँ तुमने दिखाया है? और ये हदीस दिखा दो ताकि हम मिर्जा साहब को भी छोड़ें, क्योंकि ओ उन्होंने भाई झूठ बोले हुए मेरे हैं कि सही यार बुखारी क़यामत तक की ये हदीस सिलसिला है जारी रहेगा। 3449, हजरत ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कैसे हाँ। होगे जब इब्ने मरियम तुम में नाजल होंगे और तुम ही में से तुम्हारे इमाम होंगे, ठीक है, वहाँ ठीक है, इमामुकुम मिनकुम। ठीक है, तो ये सब बात तो ठीक है। सामने आ गई सारी के तो इमाम भी वही है, मुजद्दिदीन ईसा का इब्ने सिलसिला मरियम। बंद हो जाएगा, ये कहाँ लिखा है? तो मुजद्दिद की आने तुमने की तो क्या ये जरूरत है कहा उसके था, बाद? तुमने ये कहा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम महदी के बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये हदीस हमें दिखाओ वो ताकि मैंने मिर्जा नहीं साहब को कहा भी था, हम झूठा अपने करार मुंह दे की दें। बातें मेरे पर न डालो। अपने आप कह रहे थे कि मुझे ये दिखाओ, मैंने कहा तुमने ये मैंने कहा आपसे था बात कि की नहीं इस हजरत तरह मोहम्मद की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इमाम महदी के बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे सिर्फ ये अर्ज की थी कि जब ईसा इब्ने मरियम इमाम महदी आ गए तो उसके बाद मुजद्दिद की क्या ओ जरूरत भाई है? आगे लिखा आपको हुआ है हुजूर मुजद्दिदीन का सल्लल्लाहु सिलसिला अलैहि बंद हो वसल्लम जाएगा। और उनके ये तुमने खुलफा कहा के था होते हुए ना, मुजद्दिदीन हजरत की मोहम्मद जरूरत सल्लल्लाहु अलैहि है। वसल्लम ने फरमाया, अकल है कि नहीं कुछ आपको? यानी अकल तो तुम में नहीं है। तुम कह रहे हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुजद्दिदीन का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहाँ भाई लिखा हुआ मेरे है ये मैं बात? अर्ज कर रहा हूँ
کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب تک دور تھا آپ کے خلفاء کا دور تھا کہ مجدد آئے تھے. یار گل مکاؤ ہونی ہے حدیث یا اس حدیث دا جڑا استنباط وہ پیش کر رہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب تو بعد مجدد کوئی نہیں آنے. مرزا صاحب نے جھوٹ بولیا ہے جڑا انہوں نے کہا کہ قیامت تک مجدد کا سلسلہ جاری رہے گا. مرزا صاحب جھوٹے نے تو مرزا صاحب نے چھوڑو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, مرزا غلام احمد جھوٹا قرار اپنی طرف سے گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجددین یعنی ہمارے جمع صاحب بھی آ گئے ہیں, دوسرے آ جائیں, بس ان کا سلسلہ چلتا رہے. خیر جانا اگر طارق چوہان صاحب مرزا صاحب کی یہ تحریر پیش کر دیں کہ مرزا صاحب نے کہا وہ قیامت تک مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا, پھر اس کا مطلب ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں. ہو جائے گا نا ثابت ہے, بالکل ثابت ہو جائے گا. یہ والا لاؤ جو چوہان صاحب والا پیش کرو تو یہ کہہ دے گا کہ مرزا صاحب جھوٹ بولے. لے جی والا پیش ہاں جی کر دیے پیش. شہزاد خرم صاحب اگر مرزا صاحب کی یہ تحریر آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ قیامت تک مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا تو آپ مان لیں گے نا مرزا صاحب جھوٹے ہیں؟ بھائی میرے مجدد کہتے کسے ہیں تجدید دین کو؟ مجدد کا مطلب مجدد نہیں. آپ وہ مجدد سمجھ رہے ہیں کہ جو ہر صدی کے سر پر آئے گا. اچھا ایک منٹ آپ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. خرم شہزاد مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجدد قیامت تک آتے رہیں, کہا ہے کہ نہیں کہا؟ او آپ کے میں ذہن کا میں نہیں کچھ کر سکتا. وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا. بھائی اگر اس پہ فیصلہ کرنا ہے تو اسی پہ فیصلہ کر لو. میں تو کہتا ہوں سرے سے بڑے میاں ہی جھوٹے ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا. ان کے جان چھڑاؤ ان کی. تبرانی کی حدیث بھی سن لیں. اور میں کہہ رہا تبرانی کی 4898 یہ بھی نوٹ کر لیں. مسیح موت کے بعد مجدد کوئی نہیں, ٹھیک ہو گیا. مسیح موت کے بعد مجدد نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مسیح موت کے بعد قیامت تک مجدد آتے رہیں گے وہ کذاب ہے نا. اور جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ کذاب ہے. نہیں اور مخالف کیوں بات کرنی ہے؟ ہم تو اس کی بات پیش کرنے لگے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک مجددوں کا سلسلہ جاری رہے گا. وہ کذاب ہی ہوا نا پھر. ہاں جی یہ دیکھ لیں, یہ کذاب کا میں اقتباس آئے گا. اس پر مسیح موعود نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے, میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی, اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے, اس لیے اس میں قیامت تک کی مجددین آتے رہیں گے. منفجات 4 صفحہ 409. ہو گیا فیصلہ. عہد خرم شہزاد کذاب کہہ دے ایک کذاب ہے جنہیں گل کی ہے. کہہ دے خرم شہزاد چل مائک پٹ جلدی کر. کہہ دے کذاب ہے. ہیلو بولتا کیوں نہیں؟ وہ جو حضرت مرزا صاحب کی مخالفت کرتے ہیں وہ کذاب ہیں. ہیلو وہ مخالفت رکھ پہ کرنے ہیں, اسی تو انہوں نے گال انڈورس پہ کرنے ہیں. اسی تے پیش کر رہے ہیں انہوں نے گال. ہاں یہ شیخ محی الدین ابن عربی کا بھی سن لیں. آخری زمانے آخری اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کہ عیسیٰ ابن مریم کا آخری مرزا غلام احمد کذاب تھا نا. کذاب ثابت ہو گیا. مرزا غلام احمد کذاب ثابت ہو گیا. کذاب کہہ دے کذاب انہیں جھوٹ بولیا. یہ موت تو بعد کیڑا مجدد آمنا جی. گل بھی ٹھیک ہے, میں تو خود اس گل نو مننا وا. گل جی ہے نا شہزاد خرم دی تسی مان جو کہ مسیح موت تو بعد کوئی مجدد نہیں, ایہو ہی ثابت ہوندا ہے. جیڑا بندہ یہ کہندا ہے کہ قیامت تک مجدد آن گے وہ کذاب دجال ہے. چلو جی خرم صاحب مارو نعرہ. مرزا غلام احمد کذاب کہہ دیو نا. شہزاد خرم صاحب طارق چوہان صاحب آپ کو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے, آپ کا اس وقت موڈ ہوا ہے کچھ اور. یہ مرزا صاحب کو سوچی ہے, مجھے نہیں سوچی. اتنی دیر تو جڑی لڑائی عامر انی دیر دی جڑی لڑائی ہوندی پئی سی, جے تساں ودن 5 منٹ پہلے آ جاندے تے میرا خیال کام ختم ہو گیا سی. اور ٹاس ماسٹر جی نے خلیفہ صاحب نو کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے, تے ٹاش اپنا شہزاد خرم صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب کو غلطی ہو گئی ہے. ہن پتہ کر لو جو غلطی کدے کولوں ہوئی ہے تاکہ مینوں پتہ لگ جائے غلطی ہوئی کدے. او کسی سے غلطی نہیں ہوئی. اور تجدید دین کا یہاں پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے, یہ اس کو مجددین پہلے ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر. شہزاد خرم نے مان لیا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک کذاب تھا.
وہ تو فرما رہے ہیں کہ میرے ماننے والوں سے تجدید دین کرنے والے ਉਹ آتے ਫਰਮਾਨ رہیں گے۔ ਦੇ ਹੁਣ ਕਜ਼ਾਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ? ਮੁਜੱਦਦ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਖੁਰਮਸ਼ਦਾਦ, 100% ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਤਬਰਾਨੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹਿਕੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਈਫ ਮੌਜ਼ੂ ਮਨ ਘੜਤ ਲੈ ਆ, اچھا ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। اور میری بات ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ مشکوات کی حدیث ہے، بندے نے یہ کہا، مشکوات گل کی سننا، حدیث تو جس سنیں۔ بندے نے یہ کہا ہیں اور عمر سن یہ لی، صاحب، سنن تو بغیر ہی مننی ہے، سنن دی مشکوات کئی لوڑ کی ہے حدیث تو یار، سن جب لیں۔ سنن تو 5508 او بھائی سنن تو بغیر مننی ہے۔ محمد ولی صاحب آپ کے لیے ہے یہ۔ یار سانو نہ سنا، رشداد خرم، گل سن، تم یہ جو اسی دلیل تیرے پیش تے کر رہے ہو نا، یقین اس پہ میں کرتے ہیں۔ ثابت کر رہے ہو نا کہ مشکوات کی مجدد حدیث ختم ہو محمد جانا۔ نذیر صاحب ایک حدیث تو سن لیں یار، کیا ہو مشکات گیا دی حدیث سنن تو بغیر ہی جڑی تو گل کہنا چاہنا ہے کہ مسیح موت تو نزول بعد عیسیٰ مجدد کے کوئی بارے نہیں، میں ہے کوئی اختلاف 550 عامر بھائی ایک بار موڑ کے پکا کر لو، یار حضرت عامر بھائی موڑ عبداللہ کے پکیا بن کرا لو۔ عمرو رضی ایدے اللہ تے کوئی تعالیٰ بندہ عنہ نے میری بیان گل سن، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ خرم وسلم شہزاد نے فرمایا ایس گل مسیح اور جب کھلو تو نزول جا۔ فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ہاں۔ ان کی بشارتوں کی ہاں، حامل کیوں اولاد بات- ہوگی، ہاں دعویٰ بالکل۔ ممبولیت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور جی۔ میرے ساتھ میری ہاں۔ قبر میں دفن ہوں گے، پس میں اور بس۔ مسیح ابو بکر اور عمر دونوں کے بعد کے مجدد کوئی نہیں آئے گا۔ درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے، ہاں۔ یعنی روحانیت اور مقصد باسط ہاں جی، کے ہاں لحاظ جی۔ سے ہم چاروں کا وجود آہ، مطلب صفات اور ایک ہوگا۔ پس ثابت یہ تو ہوا آپ کہ نے بتایا ہوا ہے مسیح صاحب۔ بعد مجدد نہیں ہے، پس ثابت ہوا۔ مجدد کوئی نہیں ہے، بس مجدد ہاں۔ ختم ہو گیا، مسیح موت کے بعد کوئی مجدد عامر نہیں۔ بھائی۔ اے ہن مرزا غلام احمد نے کہا کہ میرے بعد مجدد قیامت تک آن گے، ایک عذاب ثابت ہو گئے۔ چلو بھائی دیکھو نا ਉਹਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ, ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੰਨਿਆ। ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ کہ تسا غلط بیانی کر رہے ہو، غلط حدیثاں پڑھ پڑھ کے۔ اے ولی فرما دے صاحب آپ مجددین کن کو سمجھتے ہیں؟ آپ مجددین ہر صدی کے سر پر جو آنے والے تھے ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مجددین ان کی بات کر رہے ہیں جو میرے سلسلہ میں پیدا ہوں گے اور دین کی تجدید کریں گے، اتنی سی بات ہے بس۔ آنے ہیں مجدد یا نہیں قیامت تک؟ ہاں، مجدد تو دین کی تجدید کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نہیں، بس بات ثابت ہوگی، آتے رہیں گے بات کہ نہیں صاف آئیں گے؟ ظاہر ہوگی ہے۔ قیامت تک آنے کہ نہیں آنے؟ قیامت تک آن گے کہ نہیں آن گے؟ اب مجددین ہے بس، ٹھیک ہے سمجھے؟ اب وہ بول مٹی دے بابے، عمر بھائی ان کتھوں آنے نے؟ مٹی دے باوے دے منہ چ مٹی پی گئی اور کچھ وہی نا، کوئی لا کے تو دکھائے مجدد۔ انہیں دیکھو قرآن اور حدیث پڑھ کے عمر بھائی دس دیتا ہے کہ مجدد نہیں آ سکتے ہوں، قرآن حدیث تو کوئی ایک مجدد لا کے تو دکھائے۔ ہمیں مرزا صاحب کہندے رہن آن گے نہیں ہوں، مرزا نہیں صاحب آنے۔ جھوٹ بولیا ہے، مرزا صاحب قرآن حدیث تو جھوٹ بولتا ہے مرزا صاحب۔ ہاں کذاب جی سن، یہ بھی ثابت اس نے کیا ہے حدیثوں سے کہ مرزا صاحب مرزا غلام تو محمد ماڑی گل ہو گئی ہے شہزاد صاحب۔ کذاب آدمی، ابھی انہوں نے ثابت لیکن کیا۔ طارق چوہان صاحب اس تو ود کے اگے ایک اور گل اگر کریے، کہندے نے جننے بھی ساڈے خلیفہ نے مجدد نے تے مرزا صاحب تو بعد تے مجدد کوئی نہیں سی آنے۔ یہ بھی کذاب نے، یہ بھی کذاب، خلیفے بھی کذاب نے، سارے خلیفے کذاب نے۔ یہ سارا سلسلہ ہی کذاباں دا ہے۔ اتنے رکھ ہاں جی خرم صاحب، آندے رہا کرو علمی بندے۔ شہزاد خرم نے تے ٹھیری ٹا دی۔ آندے رہن گے کہ نہیں آن گے؟ مجددین قیامت تک آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولو مٹی دے باوے بول۔ وہ تو 200 سال کا بتایا ہے نا کہ 1000 کے بعد 200 سال تک مجدد آتے رہیں گے۔ تو ہو گئے نا پورے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ آ گیا تو بعد مرزا صاحب آ گئے نا، وہ تے آ گئے مرزا صاحب۔ ہوں وہ گل کر جڑی کل دی کرنا پیا،
मसीह मौत तो बाद मुजद्दद आएंगे। तो फिर हजरत मिर्जा साहब के मुजद्दद आएंगे, अब हैं? और कहाँ से लाने हैं? निकालें जरा, कहीं और से ला के दिखाएं। यार और मिर्जा साहब ਦੀ ਮੁਜੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਮਰ ਭਾਈ। 26 ਮਈ 1908 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦ ਆਣਗੇ। हाँ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, हाँ ਕਿੱਥੇ ਜਾ। जी, ਅੱਜ 26 ਮਈ 1908 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? मुजद्दीन जो हैं वो आपके ਉਹਨੇ सिलसिला ਕਿਤਾਬ में ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ, आएंगे। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। हैं क्या क्या और तजदीद दीन तो हो रही है ना, जमात अहमदिया से हो रही है तजदीद दीन। ਓਏ ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣ ਲਗੇ। ਇਹ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਤੇ ਉਂਝ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਬਿਲ ਜਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਬਗੈਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ? जी बिल्कुल। ਇਹ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਜੱਦਦ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਤੇ रहेंगे। ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਵੋ, ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲੇ ਅਮਰਦਾਈਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਯਾਰ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵਾਂ ਖੜਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਲੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਵਾਂ ਖੜਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। शहजाद खुर्रम ने तो काम ही खत्म कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि मुजद्दिदीन का सिलसिला बंद है। मिर्जा गुलाम अहमद ने सफेद झूठ बोला कि ये क़यामत तक जारी रहेगा। ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਛੱਡੇ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ हुजूर खुर्रम ने साहब साफ आज फरमाया बात करते हैं। है कि अब रूहानियत जो है मेरे सिलसिला के अलावा कहीं बाकी नहीं रही बाकी फिरकों में। ਗੱਲ ਮੁਜੱਦਦਾਂ अगर ਦੀ है ਕਰ, तो ਮੁਜੱਦਦਾਂ दिखाएं, ਦੀ। ਉਹ कोई ਮੁਜੱਦਦਾਂ मुजद्दिद ਦੀ अपने ਗੱਲ में से ला के ਕਰ। दिखाएं। ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆ ਮੁਜੱਦਦ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੇ? 26 ਮਈ 1908 ਤੋਂ तो ਬਾਅਦ कह रहा हूँ आपने साफ अपनी किताब में लिख दिया हुआ है कि अब मेरे सिलसिला के अलावा कहीं कोई रूहानियत बाकी नहीं रही किसी और सिलसिले में, किसी और फिरके तो में। मुजद्दिदीन नहीं ना अगर है है इसका मतलब। तो ला के दिखाएं। ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। नहीं, वो तो मुजद्दिद उसने आना हदीस से चाहिए। साबित कर दिया है। अब मुजद्दिदीन नहीं आएंगे। तो मिर्जा कुरान साहब ने में बड़ा साबित झूठ हो बोला है। ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਜੱਦਦ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੁਜੱਦਦ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਉਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਜ਼ਾਬ। ਕਹਿ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ओए हो ਅੱਲਾਹ ਨਜਾਤ अता कर देगा। ਕਹਿ ਦੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ओहो बहुत गुस्सा आया हुआ है अमर नजीर साहब को। नहीं नहीं गुस्सा नहीं, ऐसे तेरी गल दी तईद करने पे हैं। आज कुछ इनको जो ना तू आप वो कहना पे है। चाहिए। वो तो तायद कर रहे हैं तुम्हारी। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਈਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੁਜੱਦਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? हाँ नहीं, इसका तो काम हो गया। अब आप इसमें ਕੋਈ वो ਪਰਚੀ ਪੁਰਚੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਪੁਰਚੀ। ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। वली साहब भी अब ट्रेन मौलवी बन रहे हैं थोड़े थोड़े। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਕਹੋ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਜੱਦਦ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਜੱਦਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ और मुजद्दिदीन का कोई सिलसिला जारी नहीं। अगर हो कहते रहो। 135 साल में ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। और 200 साल साहब आपने कोई मुजद्दिद नहीं आया। अगर मुजद्दिदीन ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਵੋ ਕਿ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ।
ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ- ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਏਟ ਫਿਰ ਫਸਾਈ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਸ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਤੂੰ ਨਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਸ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ? ਉਹ ਨਜ਼ੀਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ? ਨਜ਼ੀਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਨਜ਼ੀਰੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਮੁਜੱਦਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੀਫਾ ਮੁਜੱਦਦ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ? ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਜਾਜ਼ ਨਾਮੀ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਿਲਦ 4 ਸਫਾ 452। ਐਵੇਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਹਵਾ ਬੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਵਾਲੇ। हजरत मिर्जा साहब ने ये नहीं फरमाया कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा। आपने कहा कि तजदीद दीन जारी रहेगी, मुजद्दद आते रहेंगे। आमिर भाई मजाज साहब हर सदी के सर पर आएगा। रुक जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि नहीं ਤੁਸੀਂ हदीस तो पढ़ के दसे कि मेरे मुजद्ददीन बाद नहीं आने। जब खुलफा का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि हर सदी के सर पर अब भी मुजद्दद आएगा। हदीस वापस ले लीजिए। मुजद्ददीन आते रहेंगे। मिर्जा साहब ये कह रहे हैं हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा। और चलो सिर पे आवेदा या पैर ते आवेदा से एक दिन पहले उन्होंने ये बात की। चौहान साहब सदी दे सिर ते आवे या पैर ते आवे, आवेगा कि नहीं आवेगा? हाँ बिल्कुल, ये पूछ लो इन्हें। हदीसा सुना रहे सी कि वो बंद हो जाएगा इमाम महदी ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੱਲ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਬਕੁੱਲੀ ਮੁਤਲਕਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੀਰਤ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ। ਕੱਲ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸੀਰਤ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਾਲੀ। ਹੁਣੇ ਸੁਨਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਓਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਆਸਾ ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੁੱਕੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੁਜੱਦਦ ਆਣੇ ਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ? ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੋਂ ਮਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਇਹ ਮਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਫਿਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟੂ ਇੱਕ सुनन अबरी माजा में एक अजीब हदीस है। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। छोटी छोटी हदीसें बयान कर रहा हूँ आपको, उसमें भी हर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामात 200 साल के बाद ज़ाहिर होंगी, यानी 1000 साल इसमें शामिल है। आहो ठीक है। हाँ जी, इमाम मेहदी की इमाम मेहदी आ गया ये तो ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਕਿ ਮੁਜੱਦਦ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਆ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਉੱਪਰ ਆ ਨਜ਼ੀਰ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲੇਲਾ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਜੇ। ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਨਜ਼ੀਰ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਓ ਦਾਤ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੱਬੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲੇਲਾ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਸਿਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਜੱਦਦ ਆਣ। ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ੀਰ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਚਰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਾਏਗਾ ਵੇਖ ਇਹ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਾਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਆ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਪਰ ਅਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਪੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ बेचारे दा ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ हाँ मिर्जा साहब ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪੂ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ रहे ना मिर्जा साहब ने यह नहीं कि हर सदी से आएगा, कहने लगे ने कपड़ा पहनते हैं तो उसकी भी तजदीद की ज़रूरत होती है, इसी तरीक पर नई ज़रूरियत को ताज़ा करने के लिए सुन्नत अल्लाह इसी तरह जारी है कि हर सदी पर मुजद्दद आता है। वॉल्यूम 3 मलफूजात। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਵਾ ਹਰ ਸਦੀ ਦਾ। हाँ हर सदी पर मुजद्दद आता है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ पूरा हवाला पढ़े साहब। तारक चौहान साहब आपने भी छांटने शुरू कर दिए हैं, आप पर्चियां चलानी शुरू कर दी हैं। पूरा हवाला पढ़े जरा। पूरा हवाला पढ़ो। अच्छा पूरा हवाला पढ़ो, चलो अब पूरा हवाला सुने। अच्छा ये जिल्द 3 है, सफ़ा 87, उसके ऊपर उन्होंने उन्वान लिखा हुआ है तजदीद दीन की ज़रूरत, ये उन्वान है। आगे लिखा है नौवारद, क्या ये ज़रूरी है कि हर सदी पर मुजद्दद होना चाहिए? मिर्ज़ा साहब जवाब देते हैं हाँ ये तो ज़रूरी है कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आए। बाज़ लोग इस बात को सुनकर फिर ये इतराज़ करते हैं कि जबकि हर सदी पर मुजद्दद आता है तो फिर 13 सदियों के मुजद्ददों के नाम बताओ। मैं इसका पहला जवाब ये देता हूँ कि उन मुजद्ददों का नाम बताना मेरा काम नहीं, ये सवाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो जिन्होंने फरमाया है कि हर सदी पर मुजद्दद आता है। इस हदीस को तमाम अकाबिर ने तस्लीम कर लिया है, शाह वलीउल्लाह भी इसको मानते हैं, और ये हदीस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। और हदीस की किताबें जो मौजूद हैं इनमें यह हदीस पाई जाती है। किसी ने कभी इसको फेंक ना दिया और ना कहा कि हदीस निकाल देनी चाहिए, जबकि ये बात है तो फिर मुझसे फहरिस्त क्यों मांगी जाती है। मेरा ये मज़हब है कि अदम इल्म से अदम शाइल आज़म नहीं आता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो मंसूब हो, अगर वो कुरान शरीफ के बरखिलाफ़ ना हो तो मैं उसको मानता हूँ। और ख़ुद ही इन लोगों से पूछो क्या ये हदीस झूठी है, या तो पहले इसको निकालो। अगर शक्की है तो फिर तकवा का तकाजा तो ये है कम अज़ कम हदीस की रूह से मुझे भी शक्की ही मान लो। अजीब बात है, हदीस को शक्की कहो और मुझे कज़ाब, ये तकवा का तरीक़ नहीं। अगर बफ़र्ज़ महाल झूठी है तो फिर जानबूझकर झूठ को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना लानती का काम है। सबसे पहला काम तो उलमा का ये होना चाहिए कि इसको निकाल डालें, मगर मैं यकीन दिलाता हूँ कि हदीस झूठी नहीं है, सही है। ये आम तौर पर मशहूर है कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आता है। नवाब सिद्दीक हसन खान वगैरह ने 13 मुजद्दद गिनकर भी दिखाए हैं, मगर मैं उनकी ज़रूरत नहीं समझता। इस हदीस की सेहत का ये मयार नहीं बल्कि कुरान इसकी सेहत का गवाह है। ये हदीस इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून की शरह है। सदी एक आम आदमी की उम्र होती है, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया 100 साल बाद कोई ना रहेगा, जैसे सदी जिस्म को मारती है इसी तरह एक रूहानी मौत भी वाक़या हो जाती है। इसीलिए सदी के बाद एक नई ज़ुर्रियत पैदा होती है। जैसे अनाज के खेत अब देखते हैं हरे भरे हैं, एक वक्त में बिल्कुल खुश्क होंगे, फिर नए सिरे से पैदा होंगे। इसी तरह पर यह सिलसिला जारी रहता है। पहले अकाबिर 100 साल के अंदर फौत हो जाते हैं और फिर खुदा तआला हर सदी पर नया इंतज़ाम करता है, जैसे रिज़्क़ का सामान करता है। और कुरान करीम की हमायत के साथ ये हदीस तवातर का हुक्म रखती है। कपड़ा पहनते हैं तो उसकी भी तजदीद की ज़रूरत होती है। इसी तरीक पर नई ज़रूरियत को ताज़ा करने के लिए सुन्नत अल्लाह इसी तरह जारी है कि हर सदी पर मुजद्दद आता है। गरज मुझसे एक हदीस के मुवाफ़िक़ गुज़श्ता मुजद्ददों का मुआख़ज़ा नहीं हो सकता। मैं अपनी सदी का ज़िम्मेदार हूँ। हाँ, मैं इस हदीस को सही समझता हूँ और कुरान शरीफ की हमायत से सही मानता हूँ। अगर ये लोग इस हदीस को झूठा कहने और हदीस की किताबों से निकाल दें, फिर मैं खुदा से दुआ करूँगा, यकीनन वो मेरी दुआ को सुनेगा और मैं कश्फ से नाम भी बता दूँगा। अगर ये हदीस खुद उनके मुसलमात के मुआफ़िक़ ही झूठी नहीं और नहीं है तो फिर खुदा से डरो। ला तकफुला मा लैसा लका बिही इल्म, पर अमल करो और बेहुदा हीले और हुज्जतें ना तराशो। मिर्ज़ाइयो, ये हदीस जिन किताबों में दर्ज है और बावजूद झूठी होने के उसको रखा गया है, तो फिर क्यों नहीं बाबा शाह नानक के शब्द उनमें दाखिल कर लेते और मौज़ूआत के मजमुआ में लिख लेते?
کسی صورت یہ مواخذہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہزاروں اولیاء گزر چکی ہیں تو کیا مجھے لازم ہے کہ میں ان کے بھی فرشت ہوں؟ یہ خدا تعالیٰ کا ہی علم ہے. ہاں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے. لو جی اتنا حوالہ پڑھ دیا. اب اس میں بتائیں کہاں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ صدیق کے سر پہ نہیں آئے گا اور اب ختم ہو گیا بات. نہیں وہ اس نے ثابت کر دی نا، استدلال کیا ہے. خرم شہزاد نے جو استدلال کیا طبرانی کی روایت سے دوسری روایتوں سے، مسیح موعود کے بعد مجدد نہیں ہے. اچھا جی عطا القدیر صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے طارق بھائی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے رضیہ کو گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں. منو ابھی پتا تھا انہوں نے نوحہ پڑھنا ہے. سناؤ جی نوحہ. ہاں مجھے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے اپنا طارق بھائی، کیونکہ آپ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر صدی کے سر پر لازمی طور پر ایک مجدد آئے گا، اور جماعت کے کا موقف ہے یہ ہے کہ اگر مجدد کوئی آتا ہے تو وہ خلیفاؤں میں سے ہی ہوگا. اب مسئلہ یہ پڑ گیا مجھے کہ 100 سال سے اوپر تو بیت گئے نا اپنا طارق بھائی، 125 سال کو تو جماعت کو بھی ہو گئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو خلیفاؤں میں سے ایک مجدد ہونا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ ہاں یہ پرابلم ہو گیا کہ وہ کہاں. خلیفے تو کہہ رہے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہ تو کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہم خلیفہ خامس کو مجدد کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو مکر دینے پہ وہ تو مجددہ نے نہ وہ تو کہہ رہے ہیں آنا ہی نہیں، اس کو ہم مجدد کیسے کہہ دعویٰ ہی نہیں کیا نا انہوں نے، دعویٰ ہی نہیں کیا. ہاں کوئی تو دعویٰ یہ جو نہیں. مسیح موعود کی بات ہے یہ کہاں پر جائے گی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آنا لازمی ہے؟ ہاں نہ صرف ایک دعویٰ نہیں کیا بلکہ انکار کیتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجدد دا ذکر نہ قرآن چ نہ حدیث چ. ہاں سمجھو گا بھائی اب مجدد کہاں ڈھونڈے بھائی؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا بھائی، یہ تو مسئلہ ہو گیا، حالات نازک ہو گئے. کیا وہ کہتے ہیں وہ یہ عطا القدیر صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ عطا القدیر صاحب سے پوچھتے ہیں. ہاں یہ مجھے مسئلہ ہو گیا جی عطا القدیر بھائی. مجدد اب اس طرح یعنی جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی کی ہے. ٹھیک ہے، اونچا بولو عطا القدیر صاحب، آواز نہیں آ رہی، پلیز اونچا بولو. مجدد اسی طرح آنے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش گوئی کر کے گئے ہیں. انہوں نے اپنے خلیفہ کے بارے میں پیش گوئی کی ہے. مجدد صاحب سنیں تو صحیح نا، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش گوئی کر کے گئے اپنے خلفاء کے بارے میں، اور خلیفہ نے ہی مجدد ہونا. بتائیں نا وہ پیش گوئی پڑھ کے سنائیں جس طرح چوہان صاحب نے حوالہ مجدد والا پڑھ کے سنایا. کون سی پیش گوئی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب لفظ بلفظ نہیں میں بتا رہا لیکن لفظ بلفظ بتائیں، حوالہ یا ریفرنس دے دیں یا عبارت پڑھ کے سنائیں. میں ایک مجسم قدرت ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے بعد قدرت ثانیہ ہوگی جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑے ہو. یہ تو الوصیت کی تحریر ہے نا، اس کا مجدد سے کیا لینا دینا؟ یہ اسی طرح جس طرح حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مجدد کیا ہوتا ہے؟ او بھائی صاحب مجدد ہوتا ہے. مجدد کیا ہوتا ہے؟ اب مجدد کی بھی کوئی نئی ڈیفینیشن. مجدد خلیفہ ہی ہوتا ہے نا جو تجدید کرتا ہے، اور کیا؟ وہ تو کہتے ہیں مجدد سر پر آتا ہے، ہر صدی کے سر پر آتا ہے. ہر صدی کے سر پہ نہیں کھڑے ہوتے، خلیفہ نہیں کھڑے ہر صدی کے سر پہ. اچھا ہر صدی، اچھا کون سا خلیفہ آپ کا صدی کے سر پر آیا ہے اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد؟ رابعی نہیں کھڑے صدی کے سر پہ. بھائی خلیفہ رابعی نے کہا ہے کہ میں مجدد. خلیفہ رابعی تو کہہ رہے ہیں مجدد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی معمور ہی نہیں رہا. خلیفہ رابعی تو یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو مجدد بنا رہے ہیں. بڑی پوسٹ کھڑی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو پھر مجدد کا کیا ذکر ہے؟ مجدد کا ذکر تو قرآن میں. مرزا صاحب نے جھوٹ بولا نا، یہی ہم اسٹیبلش کیا ہے شہزاد خرم نے کہ مرزا صاحب ایک کذاب تھے جنہوں نے کہا کہ مجدد دین کا سلسلہ قیامت تک جاری کا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے بعد اب کوئی مجدد نہیں آئے گا اور قیامت تک رہے گا. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلسلہ قدرت ثانیہ کا قیامت تک رہے گا. بھائی ہم سلسلے کی بات میرے بعد آئے گا اور قیامت تک جاری رہے گا. جس مجدد کی خبر نبی علیہ السلام نے دی تھی، ابو داؤد میں وہ حدیث آتی ہے، وہ مجدد ہم ذکر کر، وہ مجدد آنا ہے نہیں آنا 26 مئی 1908 کے بعد. یہ سب تجدید دین کرنے کے لیے مجدد کہتے ہیں، تجدید دین کرنے والا.
तजदीद दीन करने के लिए हाँ, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी हर सदी के सर पर आएगा। जिस तरह हज़रत मसीह सल्लल्लाहु ने फरमाया उस तरह आएंगे। उन्होंने फरमाया अब मेरे खुलफा होंगे, ठीक है ना? कहाँ लिखा है उन्होंने कि खुलफा होंगे? हाँ, समाउदुल बुशरा सफा 225 में अपने लिखा हुआ खुलफाओं है। को उन्होंने मुजद्दद करार दिया हो, अपने खुलफा को मुजद्दद मिर्जा साहब ने करार दिया हो। मैं आपको एक हज़ारी और नाम दूंगा। खुलफा को क्यों गलत बयानी मुजद्दद कर करार रहे हैं? दिया हुआ है। खुलफा को मुजद्दद कहा है। क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? खुलफा को मुजद्दद कहा है हज़रत मसीह। दिखाएं 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 कौन से खुलफा को मुजद्दद? इनकार कर दें आपके पहले के खुलफा को मुजद्दद नहीं कहा। दिखाएं ना, हवाला दिखाएं, हवाला दिखाएं। हज़रत मसीह सल्लल्लाहु ने मुजद्दद के लिए तो आयत ही वो पेश की हुई है। एक आयत जो कुरान करीम में अपने खुलफा को मुजद्दद करार दिया हुआ है, ये आपने दिखाया। इसका हज़रत मसीह सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मेरे बाद कुदरत सानिया होगी। भाई कुदरत सानिया का मुजद्ददों से क्या लेना देना? कुदरत मुजद्दद मसीह मौद ने फरमाया मेरे बाद जनाजा होगा, मेरे बाद फातिहा होगी, फूड़ी होगी, उससे मुजद्दद साबित होता है। जब तजदीद दीन के लिए कुदरत सानिया का सिलसिला क़यामत तक किसने कहा तजदीद दीन के लिए? जब किसने फरमाया कहा कि तजदीद दीन कुदरत के लिए? सानिया का कुदरत सानिया सिलसिला तजदीद दीन के लिए, जब कुदरत सानिया तजदीद दीन के लिए कुदरत बाद सानिया। आएगा हम मुजद्दद और की बात कर रहे हैं तालुद्दीन साहब, हम वही मुजद्दद की बात ये कर रहे हैं। होगा ना। मिर्जा साहब तो कह रहे हैं हर सदी के सर पर मुजद्दद आता रहेगा क़यामत तक। ये है ना। तो ये मिर्जा साहब ने ये किज़ब किया है। फताहुल कादर साहब, आप बात सही कर रहे हैं, ये आपकी बात नहीं समझेंगे। फताहुल कादर साहब, आप बात सही कर रहे हैं, ये आपकी बात नहीं समझेंगे। आप बात कर रहे हैं कि खलीफा फकत शिराज खुर्रम अभी मुजद्दद की साबित क्या कर जरूरत है? साबित करते हैं हज़रत मिर्जा अबू साहब, बकर जो सिद्दीक करना रज़ी है, अल्लाह तआला अन्हु जब मौजूद हो तो मुजद्दद की क्या जरूरत है? इसका सब करेगा तो मैं क्यों ये वो बात है जो ये समझने के लिए राजी नहीं है। जब खलीफा वक्त मौजूद हो तो मुजद्दद की क्या जरूरत है? ये वो बातें बिगड़ने की अपने पास से कोशिश कर रहे हैं कि कोई खलीफा निकाल वक्त निकाले। मौजूद हो। भाई मिर्जा साहब तो 13वें खलीफा थे, मुजद्दद है खलीफा वक्त। तो खलीफा वक्त जो है वो मिर्जा साहब थे। खलीफा वक्त से मिर्जा साहब हाँ जी। 13वें खलीफा थे वो तो मसीह मौत थे। हाँ, तो उन्होंने यही कहा है मुजद्दद को मसीह मौत कहा गया है। होता है तारिक साहब, जो वक्त का नबी होता है, इमाम होता है, मुजद्दद भी होता है, महदी भी होता उन्होंने है। कहा है मुजद्दद को मसीह मौत कहा गया है। मिर्जा साहब तो ये कह रहे हैं। आज सुने तारिक चौहान साहब, जो नबी है वो मुजद्दद भी है। वो नबी भी नहीं थे मिर्जा साहब, वो तो कह रहे हैं मैं हकीकी नबी नहीं है, जिल्ली बरूजी हूँ, अगली सिफात है। 13वां खलीफा हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, खलीफा है ना, खलीफा को मुजद्दद ही कहते हैं। 13वें खलीफा, हाँ। तो 13वें खलीफा का मतलब है 12 खलीफे पहले गुजर चुके हैं, तो 12 खलीफों की तो कोई खिलाफत नहीं चली। अच्छा, ये अभी शिदात खुर्रम ने कहा था कि सदी के मुतल्लिक नहीं उन्होंने कहा। ये देखिए मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं, ये कायदा सुने, जरा सुने, मिर्जा साहब की बात बता रहे हैं, जिसको शाहिद खुर्रम शाहिद कज़्ज़ाब करार दे के गया है, वो सुने जरा। मदर होंगे आप। मिर्जा साहब कह रहे हैं ये कायदा की बात है, बात आएगी। सुने ना जरा, ये कायदा की बात है। कंट्रोल रखना जरा, और सुन ले भाई जरा, ये ठीक है, कायदा ठीक है, की ठीक है, बात आमिर भाई। है। मिर्जा साहब कह रहे हैं ये कायदा की बात है, जब पहली सदी गुजर जाती है तो पहली नस्ल भी उठ जाती है, और इस नस्ल में जो आलिम, हाफिज कुरान, औलिया अल्लाह और अब्दाल होते हैं वो फौत हो जाते हैं। इसी तरह पर ज़रूरत होती है कि आए मिल्लत के लिए कोई शख्स पैदा हो, क्योंकि अगर दूसरी सदी में नया बंदोबस्त इस्लाम के ताज़ा रखने के लिए ना करे तो ये मज़हब मर जावे। इसलिए वो हर सदी के सर पर एक शख्स को मामूर करता है जो इस्लाम को मरने से बचा लेता है और इसको नई ज़िंदगी अता करता है, और दुनिया को इन गलतियों, बिदात, गफलतों, सुस्तियों से बचा लेता है जो उनमें पैदा होती हैं। वॉल्यूम 4 मलफूजात जिल्द 4 सफ़ा 649। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं हर सदी के सर पर आता है, वरना इस्लाम मुर्दा हो जाएगा। मिर्ज़ा साहब तो ये कह रहे हैं। अब ये जो तहरीर आपने पढ़ी इसमें इख्तलाफ क्या है? वो इख्तलाफ ये कि आप मिर्ज़ा साहब को झूठा कह रहे हैं। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं क़यामत तक मुजद्दिदीन का सिलसिला जारी है। आप कहते हैं क्या अभी क़यामत तक जो के बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म है। वही मुजद्दद है।
वही तजदीद दीन के वो लिए भाई खड़े। मिर्जा साहब ने कहा है ये बात, वो तो कह रहे हैं हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा। आपका कौन सा खलीफा सदी के सर पर आया और उसने कहा मैं कुदरत मुजद्दद? सानिया की पेशगोई नहीं की। तो भाई मुजद्ददीन की बात कर रहे हैं, खिलाफत सानिया की कहाँ बात की? जारी रहेगा। मुजद्ददीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। मिर्जा साहब ने ये सच कहा कि झूठ कहा? इस तरह थी। और मुजद्ददीन का सिलसिला क्या है? वो हदीस मुजद्ददीन के मुताबिक मुजस्सम हर कुदरत सदी है, के सर पर और आएगा। उनके बाद तो ये मिर्जाइयत जो है वो सिर्फ एक दखल है और कुछ नहीं है। जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी हालत ये है कि इनके पांव ढक लें तो इनका सर नंगा हो जाता है। अब तो इनका सारा जिस्म ही नंगा हो गया। ने फरमाया, कज़ाब दज्जाल साबित करके गए हैं मिर्जाई। हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीह मऊद के खुलफा में से कोई खलीफा दमिश्क सफर करेगा। ठीक है ना। हज़रत मसीह मऊऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसला कर दिया तो फिर आगे अच्छा, इनके मुस्लिम मऊद की सुन ले। खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, तारिक भाई, हम उसको मान लें। तारिक भाई, एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें। वो हर वक्त अताउल कदीर भाई, अताउल कदीर साहब, इधर मुजद्दद की बात हो रही है। और अताउल कदीर साहब, इधर मुजद्दद की बात हो रही है, इधर ये बात नहीं हो रही कि दमिश्क का सफर करेगा, कौन करेगा, खलीफा करेगा, दूसरा तीसरा। मुजद्दद की बात हो रही है जो हर सदी के सर पे आएगा, उसकी बात करें। वही होते हैं। पूछ लो तारिक चौहान साहब। मसला जो है वो गंभीर होता जा रहा है मोहम्मद वलीद भाई। मसला ये है कि वो जो एक सदी के सर पर मुजद्दद ने आना है, तारिक भाई ने उनकी तहरीर जो है वो बड़ी साफ तौर पर पेश कर दी गई है, कर दी है। अगर अब्दुल कदीर भाई, अगर हम कहें कि खुलफाई मुजद्दियत का काम करेंगे तो वो तो सदी के सर पर तो नहीं आए ना। वो जो पहले खलीफा थे ना, वो नहीं आए, तो इसका मतलब वो मुजद्दद नहीं थे। और आज तक अभी खलीफा खामिस चल रहे हैं, 125 साल भी हो गया है और उन्होंने मुजद्दियत का दावा नहीं किया है। तो क्या बनेगा उस मुजद्दद का जिसका हज़रत मसीह मौऊद ने भी इकरार किया कि वो हर सदी पर ज़रूर आएगा। तो ये मामला हल करने के लिए कोई और फिर देखते हैं। अताउर रहमान भाई तो मेरे ख्याल में मुश्किल है उनके लिए। चंगेज़ खान, आप अब देखें मिर्जा साहब ने कैसी वाज़ेह बात की है। वो कहते हैं तारिक भाई, हाँ, ये अताउल कदीर साहब को ये भी बताएं कि शहजाद खुरम साहब ने कहा था कि मसीह मऊद के बाद मुजद्दद खत्म हो गए, मुतलकन इनकार। तो भाई शहजाद की बात वो नहीं लेंगे ना, शहजाद की बात शहजाद के साथ करें। वो अताउर रहमान उनके जवाब दे तो नहीं है ना अभी। इसका हल यही है, छोड़े मिर्जायत को, छोड़े मिर्जायत को। देखें कि मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो कोई मामूली और सरसरी निगाह से देखने के काबिल बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ी अजीमुशान बात है। मेरी अपनी बनाई हुई नहीं बल्कि खुदा ताला की बात है। इसलिए जो उसकी तकजीब के लिए जुर्रत और दलेरी करता है, मेरी तकजीब नहीं करता बल्कि अल्लाह ताला की आयात की तकजीब करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब पर दलेर होता है। मुझे उसकी तकजीब से कोई रंज नहीं पहुंचता और हमेशा अलबत्ता उस पर रहम आता है कि नादान अपनी नादानी से खुदा ताला के गज़ब को भड़काता है। ये बात मुसलमानों में हर शख्स जानता है और गालिबन किसी को भी इससे बेखबरी ना होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद को भेजता है जो दीन के उस हिस्सा को ताज़ा करता है जिस पर कोई आफत आई होती है। और ये सिलसिला मुजद्दिदों के भेजने का अल्लाह ताला के उस वादा के मुआफिक है जो उसने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून में फरमाया है। मलफूज़ात जिल्द 2 सफ़ा 456। यानी मिर्जा साहब तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह रसूल की तकजीब होती है अगर मुजद्दद का इनकार किया जाए। तो भाई चंगेज़ खान आ गए हैं। तारिक चौहान साहब, एक मिनट रुक के बात करें, ठंडे होकर बात करनी है। चंगेज़ भाई जी, टॉक मास्टर जी करें बात आप। हाँ, मैं ये कह रहा था चंगेज़ भाई कि मसला ये उठाया कि अभी तारिक चौहान ने एक तहरीर पेश की है मसीह मऊद की, वो ये कह रहे हैं कि हर सदी पर एक मुजद्दिद आना ज़रूरी है, तो वो आता रहेगा। अब मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे खुलफा जो है वो मुजद्दिद हैं,
मगर पहले खुलफा सदीक के सर पर नहीं आए, दूसरे नहीं आए, तीसरे नहीं आए, चौथे जो थे उन्होंने दावा नहीं किया कि मैं मुजद्दिद हूँ, तो इसका क्या हल पेश करेंगी जी? इसका सबसे पहला हल ये है कि जिनके पास आप बैठे हैं वो क्या समझते हैं कि मुजद्दिद आएगा कि नहीं आएगा। जो आपसे सवालात कर रहे हैं इस बारे में, उनका क्या कीदा है? जिनके पास आप बैठे हैं वो तो आमिर नज़ीर हक मुअद्दल इनकी आप सफाइयां दे रहे हैं, आमिर इधर नज़ीर बैठ हक मुअद्दल के एक दूसरे के साथ आप बहस कर रहे हैं, वो तो उनको दज्जाल कज़ाब समझते हैं जिनके पास आप बैठ के तकरीरें कर रहे हैं सारे अहमदी। हाँ जी, आमिर नज़ीर भाई जवाब दें, आपका मुजद्दिद के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अकीदा है? आमिर नज़ीर ट्रक के उतरे हुए हैं। वलीद के भाई अभी नीचे उतरे हुए हैं, आमिर भाई अभी नीचे उतरे हुए हैं। मसूद बैठे हैं, ये मसूद वलीद है ना, इनसे पूछें इनका क्या मुजद्दिद को मानते भी हैं आप जिनके साथ बहस कर रहे हैं इधर बैठ के? तारक चौहान बहस इनके साथ नहीं कर रहे, हम मिर्जाइयों के साथ बहस कर रहे हैं। खान चंगेज साहब, हम मिर्जाइयों के साथ मिर्जा साहब की तहरीरात पेश कर रहे हैं। एक मिनट म्यूट कर लें। करूंगा ये जो मरज़ई इधर बैठ के इनकी अकल पे। चंगेज खान साहब, मैंने आपका माइक म्यूट किया, 1 मिनट के लिए बात सुन ले। मैं वैसे म्यूट नहीं करता होता किसी को। अगर तो आप यहाँ पर ये अर्ज करने आए हैं कि सारे लैके तक निकल चलिए इथों, तो ओदा फायदा कोई नहीं है, फिर आप नीचे बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। अगर सुन ले मेरी बात भैया, मैंने आपका भी मौकफ देखना है ना भाईजान। आप जो बात करने लगा वो सुन ले पहले मेरी बात। आपकी मैंने सुन भाई आप भी जवाब देना आपसे। सर सुन ले भाई बात। उस इशू पे बात करने जो का हमारा मौकफ है वो हम बता देंगे बाद में। अपना दे दो। नहीं अपना तो हम बाद में देंगे, हमने तो मान लिया आने वाले को। आपने तो माना ही नहीं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप पहले बताएंगे फिर हम बताएंगे कि हमने कैसे माना। बात तो ये है उनके साथ हमारी बहस ही नहीं है। वो तो मिर्जा साहब को कज़ाब दजाल मानते हैं, मिर्जाई को नहीं ना मानते। मिर्जाइयों को हम बता रहे हैं। अभी शहजाद खुर्रम, मेरी बात सुनो, अभी शहजाद खुर्रम साबित करके गया है मैं तो ये हदीस के मुताबिक मुजद्दिदीन का सिलसिला बंद है। अहमदियों के ऊपर जो इधर बैठ के तो अपना मजाक उड़वाते हैं, और ये तो इधर बैठने के लिए ये तो हाँ, तो अगर झूठ बोलोगे, मिर्जा साहब को कज़्ज़ाब साबित करोगे तो तुम्हारा मजाक ही उड़ेगा। तारिक साहब, आप तुम्हारे गले में फूलों के हार नहीं पड़ेंगे, मेरी बात सुने, तुम्हें जूतियों के हार ही पड़ेंगे तुम्हारे गले में। तारिक साहब, आप इतनी बदतमीजी से गुफ्तगू करते हैं, कल भी आप करते रहे। मैं हैरान हूं अहमदियों पे, तो चुप करके मलंगों की तरह बैठे रहते हैं और अपना भाई झूठे जो हैं, झूठे हैं, उनके पास मिर्जा साहब की तालीम नहीं है। अब जैसे इस वजह से वो चुप करके बैठे रहते हैं। शेख साहब को अच्छी तरह पता है आमिर नज़ीर का कि वो क्या क्या अंदर अपनी। आमिर नज़ीर के साथ तो बहस ही नहीं हो रही बेवकूफ। हम तो मिर्जाई शहजाद खुर्रम के साथ बात कर रहे थे। वो कह रहा था आपको बहस करनी होती है ना तो किसी शहजाद खुर्रम के साथ हम बात कर रहे थे। वो कह रहा था इतना ही आपके पास कोई टिश्यू वगैरह है तो इसको दे, ये तो रोना शुरू हो गया। शहजाद खुर्रम कह रहा था मेहदी के बाद खुल गई तो तुमने रोना शुरू कर देना। और बात सुनो चंगेज खान, साहब इस बच्चे को आप ही अब चुप कराएंगे या कौन चुप कराएगा? नहीं, मुझे नीचे रोना शुरू कर दिया इसने। नीचे तार दो, मैं मातम करता हूँ ऐसे अहमदियों के ऊपर। आपको इल्म फैलाने का शौक है ना, अपनी ब्राड लगाया करें। नहीं, वो शहजाद खुर्रम साहब ने मिर्जा साहब को कज़ाब और दजाल साबित किया। ये समझते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि तारिक साहब आपकी अकल को मातम है। शहजाद खुर्रम ने मिर्जा साहब से प्यार है ना, मेरी बात सुनिए, अकल पे मातम करो। इतना ही मिर्जा साहब के साथ प्यार है ना तो अपनी ब्राड खोल के ना। अच्छा यार, लड़ाई ना करो, मसले को हल करना क्यों? हमें आके सिखाएगा, यहाँ पे बैठे हैं मसले के हल के लिए। तुम्हारा तो मसला ये है टाग मास्टर साहब के हर सदी के सर पे आना है मुजद्दिद। क्यों टाग मास्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ? ओ वेज तो है यार, कंट्रोल रखा करें आप शोएब राजा भाई। एक बंदी के साथ मैं असल में अमर भाई मॉडरेटर नहीं हूँ, लेकिन वो असल में आया लड़ाई करने। वो कहता है कि मैं लड़ाई कर 70 साल बंदे के गले पड़ रहे हैं वो। असल में वो अता साहब बेबस होके बैठ गए, तो वो अब वो उसको ले लिया ताक मास्टर साहब ने कि वो हो सकता है जवाब दे दे, और उसने आते लड़ाई शुरू कर ली। अगर मेरी बातों का जवाब है नहीं है तो मैं क्या कौन सी बात? अच्छा सुनाएं बात, मैं सुनता हूँ, बाकी सारे बात करता हूँ, बोलता हूँ, बीच में सारे बोलने लग पड़ते, सारे खामोश हो गए। लोग बात कर रहे होते हैं, मैं खामोश हो जाता हूँ, म्यूट लगा लेता हूँ। करें बात आप जी। हाँ जी, देखो जी, खामोश होकर बैठे, मेरी जवाब दो, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं।
आप बात तो करें ना। सानिया हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बाद आनी थी, ये पेश गोई थी, तो दिखाओ मुझे, दिखाओ हजरत मसीह मौद मौजू है वो मुजद्दिदीन की हदीस हजरत खलीफा ने किया, सारे जब आपकी बात मुकम्मल हो जाए फिर बता दीजिएगा, बाकी कोई बंदा ना बोले भाई। तेरी बात मुकम्मल होने देना, बार बार वो तारीख का बीच में बोल पड़ते, कभी कोई भी बोल पड़ता है। ठीक है, बोलें। आप देख, वो बार बार हजरत मसीह की तहरीरें पढ़ देते हैं जिन पे इख्तलाफ कोई नहीं है। जी मुजद्दद होना था, हाँ बिल्कुल होना था, तो ईद दीन होनी थी, हाँ जी बिल्कुल होनी थी, और जारी है। हजरत मसीह मौद ने जिस तरह फरमाया उस तरह जारी रहेगी ना भाई, इनकी मर्जी से थोड़ी जारी रहेगी। हजरत मसीह मौद ने फरमाया मेरे बाद कुदरत सानिया होगी, मैं मुजस्सम कुदरत हूँ, जिस तरह नबी होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुदरत सानिया, जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए थे, साल दे के बता दिया, अब इस तरह से जारी होनी है कुदरत सानिया, और ये कुदरत सानिया का सिलसिला क़यामत तक रहना है। खत्म होगी बात। अब मुझे ये दिखाना है कुदरत सानिया। अच्छा आमिर नजीर साहब, आपने बात करनी है, तो जो बात आपके साथ हो रही होगी ना उससे फिर करनी है। आपने आखिरी फैसला के ऊपर बात करनी है, जो मेरे साथ चल रही थी आपने, उस टाइम भी मुझे नहीं बोलने दिया था आपने, ठीक है। मैंने तारिक चौहान साहब से सवाल रखा है, अगर वो जवाब देंगे तो फिर मैं बोलूँ उनके साथ बात। आपकी बात मुकम्मल हो गई है। बार बार आपकी आवाज़ जो है ना, वो जिस तरह समंदर की लहरें होती है ना, उस तरह ऊपर नीचे हो रही है। पता नहीं आपके सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है या क्या, लेकिन बहरहाल जो बात आपकी समझ आई है वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो अपने रसाला अल वसीयत में कुदरत सानिया का जिक्र किया है, आप ये कह रहे हैं कि वो कुदरत सानिया क़यामत तक रहनी है। अब वो जो कुदरत सानिया है वो एक ऐसा गोल मोल लफ्ज़ है कि खुद मिर्ज़ा साहब के जो पहले खलीफा थे ना, हकीम नूरुद्दीन साहब, उनको भी नहीं पता था कि इस कुदरत सानिया से क्या मुराद है। यानी कुदरत सानिया से मुराद वो लेते रहे हैं किसी ऐसे गालबन बच्चे को जिसका मिर्ज़ा साहब से वादा किया गया और वो नहीं मिला, तो वो शायद उसकी तरफ समझते रहे हैं, लेकिन वो दुआएं करवाते रहे। अब आपने बाद में हकीम नूरुद्दीन साहब के जाने के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि कुदरत सानिया से मुराद निज़ाम खिलाफत है, खिलाफत का निज़ाम है। हकीम नूरुद्दीन साहब को भी समझ नहीं आई, हम समझदार हैं, हमें पता चल गया इससे मुराद खिलाफत का निज़ाम। चलो ठीक है, आपने घड़ लिया खिलाफत का निज़ाम, निकाल लिया उस बात में से। हमने कहा चलो ठीक है, ये आपकी ज़ात है, आपका मामला है। अब आप इसमें से मुजद्दद भी निकाल रहे हैं। हमारा सवाल उस मुजद्दद के मफहूम और मजमून पर है जिस मुजद्दद की खबर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी थी, और वो गालबन अबू दाऊद में वो रवायत मौजूद है कि हर सदी के सर पर मेरी उम्मत में मुजद्दद आते रहेंगे। आपसे सवाल ये पूछा गया था कि आपके यहाँ मुजद्दद का कोई मफहूम पाया जाता है? अगर वो पाया जाता है, मिर्ज़ा साहब के बाद कोई मुजद्दद आना है? आपके खुरम शहजाद साहब ने कल से यहाँ पर शोर मचाया हुआ है कि मसीह मौद के बाद मुजद्दद कैसा, मसीह मौद के बाद मुजद्दद कैसा, मसीह मौद आखिरी मुजद्दद है, आखिरी में। चलो जी, अब उनके बाद जब कल से इन्होंने शोर किया तो उनके सामने ये हवाला रखा गया कि भाई मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं क़यामत तक मुजद्ददीन का सिलसिला जारी रहेगा, मेरे बाद भी मुजद्दद आए तो क्या उसमें गलत है? यानी मुजद्दद प्रॉपर खलीफा की बात नहीं कर रहे, कुदरत सानिया की बात नहीं कर रहे, मुजद्दद की बात वो कर रहे हैं। मुजद्दद आने हैं मिर्ज़ा साहब के बकौल, तो उसमें वो तो पड़ गए झूठे खुरम शहजाद साहब, वो तो मिट्टी का बाबा बन के यहाँ पर जूं बैठे आवाजें दे दे। अब आप तशरीफ लाए हैं तो मेहरबानी करके के बारे में मुझे बात करें। खत्म होगी, वो हौसला रखे, मेरी बात खत्म होने लगी है, आखिरी 10 सेकंड रह गए। ना करें ना, बात करें। मैं ये कह रहा हूं कि अब आप तशरीफ लाए हैं तो आपने मुजद्दद के मौजू पर बात करनी है या कुदरत सानिया से खिलाफत निकालनी है या खिलाफत को मुजद्दद बनाना है? पहले सोच के मफहूम एक वाज़े कर दें। बातें मिर्ज़ा साहब की पढ़ते हैं वो अल वसीयत से, जिसमें एक गोलमोल लफ्ज़ लिखा कुदरत सानिया,
उससे बड़ी मुश्किल से आपने खिलाफत निकाली है, अब उस खिलाफत से मुजद्दद निकालना चाहते हैं, या कहते हैं कि मुजद्दद का सिलसिला है ही नहीं, जिस तरह आपके खलीफा साहब ने कहा है कि मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में। या तो मुजद्ददों का इनकार करें, अगर इकरार है आपको कि मुजद्दद हर सदी के सर पर आना है, और मिर्जा साहब सवाल करके रुक भी जाया करें प्लीज। ये बात ही नहीं करने दे रहे। टाक मास्टर साहब आप कोई अरेंज करवाएं भाई, बात बैलेंस बात होनी चाहिए, ये बात करने ही नहीं दे रहे मुझे। आपके एक कहने पर रुक गया, आपने कहा रोक दिया मैं। अब सुने, जवाब भी सुनिए। सवाल छोटा सा होता है, जवाब की जो है ना तफसील तलब सवाल तो नहीं कर रहे, सवाल तो नहीं कर रहे, आपके अकीदे का बुतलान पेश कर रहे हैं, वो आप करने ही नहीं दे रहे। अकीदा बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। मुजद्दद का जिक्र ना किसी वो सही कुतब की हदीस में है ना कुरान करीम में है। जिक्र क्या है? खलीफा का। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खलीफा को ही मुजद्दद कहा। ये बात अपने ज़हन में डालें, ठीक है? खलीफा को मुजद्दद का इसकी दलील दें, हवाला दें। का जिक्र है, हजरत कुरान सही बुखारी में भी फरमाया है कि मेरे बाद खुलफा होंगे। खलीफा को मुजद्दद मिर्जा साहब ने कहा है, इसका हवाला दें। ठीक है ना? हाँ जी, खलीफा को मुजद्दद कहाँ पर कहा है वो हवाला दें। तो इस्लाम ने सूरह नूर की आयत का हवाला दिया हुआ है मुजद्दद के लिए, ठीक है ना? सूरह नूर की जो आयत है वो तो खिलाफत के बारे में है, खुलफा के बारे में है। 55 नंबर आयत, वादुल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। तफसीर में मुजद्दद का जिक्र है। क्या तफसीर में मुजद्दद का जिक्र है? तफसीर में मुजद्दद का जिक्र है? हाँ जी, हज़रत मसीह। अच्छा, आपसे वैसे बात बनती नहीं है ये वाली, क्योंकि आपका मसला नहीं है। आप पहले बताएं आपका मुजद्दद है किधर? 14वीं सदी में, 13वीं सदी? नहीं, हमारा जो मुजद्दद है वो इस तरह तो होता ही नहीं ना कि आके वो मुजद्दद तजदीद के वो दावे करे मुजद्दद होने के। हमारा तो मुजद्दद इस तरह का होता ही नहीं। आपका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है। हम आपके दीन के बारे में सवाल, अपने बारे में नहीं करते। चले आगे, चले आगे बात बताएं ना, आपका है कौन? नाम बताएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ मुजद्दद की पहचान करना, उस पर ईमान लाना कोई फर्जियत में दाखिल नहीं है। मुजद्दद एक ऐसा हमारे यहाँ एक शख्सियत है, एक ऐसा ओहदा है, एक ऐसा मकाम है कि वो अल्लाह ताला जानता है या वो बंदा जानता है कौन है वो मुजद्दद जिसने तजदीद दी। आमिर नज़ीर साहब, असल बात है कि आपके अकायद की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, हमारा तो बात मिर्जाइयों के अकायद की और मिर्जा साहब की तहरीर की ये बात हो रही है। हाँ जी, हमारा तो इस बात से लेना देना ही कोई नहीं। आपका लेना देना नहीं है ना, तो अब आप जो है ना फिर वो अपनी बात करें जो आपसे बात हो रही है।